Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope I'm audible to all of you. If anyone can thumbs up and show that they can hear me loud and clear, then we can proceed with our seminar. Okay, great. Thank you very much. I welcome you all to our first seminar on orientation of our postgraduate certificate course on mental health and research for universal health coverage. You are among the lucky people जो कि टोटल जो हमारा डिप्लोमा का कोर्स हो रहा है उसमें जो स्पेसिफिक हमारा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स है मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का you are you will inshallah become a part of our team and we will work with you or let's begin with our today's seminar. We will start with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. जी, I welcome you all for today's first seminar. मेरा नाम डॉक्टर हुदा शुएब है और मैं डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन विद इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स और ऑन मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च की कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ. आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ कैंपस डायरेक्टर एंड रजिस्ट्रार एट ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी. हमारा जो आज का सेमिनार है उसके जो बेसिक और अहम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं कि आप सबको हम ओरिएंट करें अपने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स से रिलेटेड कि इस कोर्स में आगे आप लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, हम कैसे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे. इसके अलावा जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेनिफिट पैकेज और उसकी रेलेवेंस टू मेंटल हेल्थ केयर इंटरवेंशंस. And most important is the assessment and management of mental, neurological, and substance use disorders using the WHO MH-GAP intervention guide in primary healthcare settings. So let's proceed forward, and I would like to give stage now to Professor Dr. Saima Hamid. Dr. Saima Hamid has done her PhD in public health. She's currently working as HOD community medicine and public health at Shifa Tamir Millat University. So Dr. Saima, can you hear me properly? Thank you very much. Thank you, Dr. Huda, for the introduction. और मुझे सबको अस्सलाम वालेकुम से शुरू करने दें. I hope everyone is doing well and excited about this course. क्योंकि जिस तरह अभी डॉक्टर हुदा ने बताया कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन है ये काफ़ी इसमें थॉट प्रोसेस हम सबका गया. And it is a topic that is of national priority. And I must share with everyone that it's indeed a great pleasure for me to be part of this team, as I strongly feel that this postgraduate certification on mental health and research for universal health coverage is very critical in achieving the well-being of people at large in the short term as well as in the long run. So, Dr. Huda, if you can turn to the next slide, please. So I can move on and tell you more about this program, because you see, अभी मेरे बाद डॉक्टर उस्मान हमदानी अपना जब इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो I'm sure he will share his journey that led to the conceptualization and implementation of this course in today's seminar, and also the noteworthy contributions he has made to make this thing happen. ये बहुत से लोगों की joint effort है, and I'll take it up from where Dr. Huda left. यहाँ पे एक इस certification का बहुत important objective है, और वो ये है कि to gain an understanding of the universal health coverage benefit package. अब ये UHC benefit package क्या होता है, इसकी relevance क्या है to the mental health initiatives. So I would like to walk you through with the concept of these words and how it's connected with the burden of mental health in Pakistan, and how a public health approach at the primary healthcare level is relevant to the design of this course. So when we say that this course
has the vision to achieve the UHC for mental health in Pakistan, it entails कि भाई universal health coverage है क्या? I mean, we have to have a common understanding of this word over here. और अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे कि इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि all people and communities can use the promotive, preventive, curative, rehabilitative and palliative health services they need, they can use them. और ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, they are available to them as they need them in sufficient quality, क्योंकि जब तक अच्छी quality नहीं होगी तो services are not effective, while also ensuring that the use of these services does not expose the user to the financial hardship. It's very important to understand these words that are highlighted in red. But you must have a clear understanding of these words. When we say, when we refer to the different types of services, especially the promotive, इससे क्या मुराद है? It's the process of enabling people to increase control over their own health and its determinants, and hence that leads to the improvement of their health. For example, injury prevention, for example, addictions awareness, and so on and so forth. और प्रिवेंटिव सर्विसेज का आप सबको पता है, मिसाल के तौर पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया. और जो क्वालिटी है, क्वालिटी से मुराद क्या है? हम क्वालिटी से है कि अगर आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनकी मैनेजमेंट के हवाले से you adhere to the protocols and the guidelines and the tools for screening such kind of cases जो कि mental health issues के साथ पाकिस्तान और at the primary healthcare level in your context, in your clinics वो आते हैं, तो आप एक standardized तरीके से इनको वो services कैसे देंगे? So इस course में basically we just do not just focus on the knowledge and understanding of these tools, but also the management protocols that can be used by the general physicians such as yourselves. And this is what culminates or is seen as the mission of this certification. So which is, and Dr. Huda, if you could turn to the next slide. This now makes sense because as primary physicians, you are the linchpin in this initiative. So our mission is to develop a university-led model of mental health care service delivery provided by doctors, family doctors, and general physicians. So यहाँ पर हम इसको university-led model इसलिए कह रहे हैं because as you all know, you have enrolled for this program with the Shifa Ta'mir Millat University, and Global Institute on Human Development is a very good example where not only did the content that you will be exposed to is research based, but this institution has been actively involved in generating that evidence. So, given the burden of rising mental health issues and problems in Pakistan, our reliance on specialists has to be less, as there are interventions such as this program that helps the human resources and health, such as yourselves, to manage such kind of cases. And as you can look at this mission, I mean, isko dekhiye, it's characterized by a comprehensive personal, family, and community-oriented mental health services. Now, एक लफ्ज इसमें ये बहुत important है because we're talking about an integrated package of service delivery with comprehensive medical care with a particular emphasis on family unit. And by that we mean that this particular emphasis on the family unit, who is the most relevant person over here? The general physicians are. So you are well placed to go through this entire certification, gain knowledge, and then you have the skill set to apply it in your routine practice. So if we move on to the next slide, please, we can see that this basically boils down to the, it's time that I bring things together. So the convergence to this discussion is that
we need to connect this concept to the international commitments that have been made by Pakistan so far. And we do see that universal health coverage is a fundamental human right. तो इसे एज अ बुनियादी इंसानी हक समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ ये अभी ये recent years में नहीं आया, just it has been promoted by WHO, but let me tell you that this began with in early 2000 when we signed the Declaration of Alma Ata. So अब अगर हम इसको देखिए कि आज के दिन जब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का स्टेटस कहाँ पे है, पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखा बहुत ही शुरू में, जो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए। देयर आर अबाउट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू नोट इज that in the 2030 agenda for the SDGs, we agreed upon a shared blueprint for the peace and prosperity for people and planet for now as well as in future. And the third sustainable development goal, which relates to health, और उसमें भी basically ना 17 sustainable development goals के हर goal के नीचे there are targets, and underneath those targets are some indicators. So SDG 3.8 refers to achieving universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health care services, and access to safe, effective, quality, and affordable essential medicines and vaccines. So basically, जो हमने UHC की definition अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, उससे उस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है, और ये certification is contributing to that particular target of under the SDGs. And why do we need to do that? I mean, globally, progress on the UHC has been rather slow. If I just share for the benefit of our audience, an estimate of 2021, the situation is not that promising because about 4.5 billion people globally were not fully covered by the essential health services. And again, a huge number, 2 billion people were facing financial hardship, including 1 billion experiencing catastrophic out-of-pocket health spending. Or here, 344 million people going deeper into extreme poverty. So, जो हमने पहले शुरू में देखी थी definition, उसमें financial hardship का जिक्र आया था. So if we do not address that, we do not provide the financial protection to the people, then there is a higher chance that whenever there is a health crisis, people will be spending out of pocket, and eventually that can lead to a catastrophic out-of-pocket health expenditure, which results in a person who is not below the poverty line, लेकिन उसको extreme poverty या below the poverty line ले जाएगा. So isliye, while you are seeing patients in your clinics, it is important to see or at least connect the dots as to how your work is connected to the global impact, because every single patient that you see in the right way contributes to this global impact. Or you are the key people who can drive this change. So if we now move on to the next slide, let me just bring things together and say that, there are certain essential public health functions that any system provides. Or jo khas taur pe of the 17, SDGs that are visible up there, well, a few selected, they're all related to health one way or the other. There's a lot of interconnectedness of the different sustainable development goals. And from there, agar hum ye chahte hain कि when we talk about the universal health coverage, there are three things that one really covers. One is the population coverage. Yani 100% of the people are covered by essential health services. Because we have to realize that not every single type of service can be available to everyone. So hence the word essential health
सर्विस। और जब हम ये UHC बेनिफिट पैकेज का जिक्र करते हैं तो उसमें हम हर बीमारी का नहीं बल्कि जो प्रायोरिटी नेशनल लेवल पे कंसेंसस जिस पे आ चुका है उन एसेंशियल सर्विसेज का जिक्र होता है। So Pakistan has already gone through that entire process, and what we see is that through a series of stakeholder consultations and all, evidence-based interventions that worked within a health system were adopted at the national level. And now it's more to do with the practical implementation of these different essential health services. That's important. So if we look at this picture, we can clearly see that the way to go about is through the primary health care. अब जब हम primary health care की बात करते हैं, तो what does that term mean? It is a term to describe the first contact a person has within the health system when they encounter a health problem or an issue that is not an emergency. So primary health care में सबसे पहला जो point of contact है वो generally एक general practitioner होता है, और and that shows that how important your role is in this entire big picture, because not only are you contributing in the UHC through the covering a lot of people, that's called the population coverage, but साथ आप quality management of basic health problems भी provide कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि health service coverage भी improve हो रही है, and the financial protection is that it's not taking into account the financial situation of the person, what kind of provisions are there in the system. For example, the Sehat Sahulat program of Pakistan is a good example. So essentially, the global picture, all these three dots are actually connected. So अगर हमने UHC को achieve करना है, तो we can do that through the UHC, and the primary healthcare approach is the best way. When we talk about the universal health coverage, एक और भी चीज शायद आप लोगों ने सुनी हो, उसे कहते हैं UHC index. और UHC index भी अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो we stand at 52, and that was in the year 2022. So the progress towards UHC is slow, and we have to see as health professionals that this is not just the duty of the government of Pakistan, but all the health workforce involved should accept this concept and then work accordingly towards achieving it. So next slide, please. So this is, the crux of it. UHC is not possible without a primary healthcare approach, and PHC is not possible without the GPs and family physicians. So in order to strengthen our primary healthcare system and advance the universal health coverage, it is indeed critical that all the GPs are trained as family physicians. And this is, very, very critical, because we need to make use of all our resources, because there are huge challenges in our system. So which you can see in your next slide. We all understand that Pakistan is the 5th largest population. So Dr. Huda, next slide आप कर सकती हैं, please. So if we just look at this, हम अब सारी चीज़ों को ज़रा देखिए कि हम ये बुनियादी तौर पे हमें समझना है कि आप जब ये कोर्स इसमें एनरोल होते हैं, तो आपका सिर्फ एक अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज या स्किल नहीं है. You are actually contributing at the national and at the global level as well. So look at the situation of Pakistan, for instance. We are the 5th largest population. Our UHC at the start was at 40%, and if as in comparison, अगर आप ये देखें तो sub-Saharan Africa में it was higher. They started off with 42,
And after so many years, we stand like by 2022 का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, we stand at 52. So we have a long way to go. And there are reasons that contribute to this low coverage. आप देखिए ना, हमें जो आउटकम्स नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि एनीबडी रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 73.5 years. बट अगर पाकिस्तान में कोई यहाँ यहाँ पर क्या है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इट इज 65 years. आई मीन ऑलमोस्ट 10 years पीछे हैं हम. And of course, we are living in a limited resource setting. If you look at our expenditure, the 1% GDP जो public sector में है, that's on health. In the private sector, it's only 1% more. It's like 2%. But then much of this amount is spent on the curative healthcare services in the private sector. And in the public sector, at least the situation is slightly better, where 80% of the preventive and primary healthcare services expenditure is there. But then again, if you look at the huge challenge that we have in terms of population coverage, तो वो तो इतने अमाउंट से या इतनी लो परसेंटेज के साथ तो नहीं पूरा होने लगा. साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जितनी भी हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी हमारी अगर बाकी भी आप ममालिक से कंपेयर करें तो वी आर नॉट डूइंग वेरी वेल ओवर देयर. So there is a way to calculate the density of the essential health workforce per 10,000 of population. और अगर आप उसमें सारे physicians, nurses और midwives भी डालें तो तब भी देखें we are doing far worse than a lot of other countries in the region and other Muslim countries as well. So how do we overcome this challenge? यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट HRH स्टार्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन बताते हैं, उसमें हमें ये पता चलता है अप्रॉक्सिमेटली 800 साइकाइट्रिस्ट्स इन पाकिस्तान आर अवेलेबल. सो आर रिलायंस फॉर द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि क्लियरली दे आर ऑन द राइज इन आवर कॉन्टेक्स्ट, those are clearly not enough. और दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है, या ये और ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हेल्थ कैन हेल्प overcome or identify critical cases and focus more on the prevention or early detection that will help us, contain the number of such future mental health problems that any family could encounter. So this is the larger picture in which it is so very important to identify certain low-hanging fruits, and I strongly feel, and we all at GIHD feel, that this certification is one answer to this problem. So if we now look at the national level commitment, we all know that the National Health Vision of Pakistan actually addresses these issues. So this was the National Health Vision developed in consensus for the period of 2016 to 25. And that too, इसकी भी vision की जो statement है, अगर आप इसे भी गौर से देखें तो that is totally aligned with what we have said earlier. Like, it is focusing on improvement of health of all Pakistanis, jiska matlab hai universality is there. It's talking about the quality essential health services. So the concept of UHC is there. It is aligned to the international commitments. And what is best, that the Ministry of National Health Services Regulation Coordination has already done a midterm review, so that if there is any course correction required, कोई प्रायोरिटी सेटिंग में चेंज लाना है तो उस पे फोकस किया जाए. So, it's important that while a GP sees this burden of diseases,
at the right at their doorsteps. The GPs see that, but what kind of implications these kind of cases have at the policy level? So you should be in a position to appreciate that. So while you're presenting or treating or managing your patients using the best or the protocols that are updated, that are proven by research, and are good implementers, you should be aware of your contribution in the larger picture. And I just wanted to, conclude by saying that mental health is indeed a priority for Pakistan, and early detection or intervention is required. And of course, your role in your respective settings is of immense importance. So thank you very much. Now, over to you, Dr. Huda. Thank you very much, Professor Dr. Saima Hamid, and for giving all the candidates a comprehensive overview of what UHC SDGs are, what are the roles of GPs in our community, and how mental health problems can be identified and facilitated. So thank you very much, Dr. Saima. So let's move on to the next part, and for this I would now request Dr. Sayyid Usman Hamdani. मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि Dr. Usman Hamdani is the course director of postgraduate certificate course in mental health and research for universal health coverage. He did his PhD psychiatry in child and adolescent from UK, and he's also currently serving as an assistant professor of psychiatry and global mental health. He's also the founding director of Global Institute of Human Development, Shafat Amira Millat University. So over to you, Dr. Usman. Thank you, Dr. Huda, and thank you, Dr. Saima, and Assalamu alaikum to everyone. Over the next 1 hour approximately, I'll try to cover the nitty-gritties of what the course is about, what is that we want to achieve with you, what is expected out of you, and how we can achieve the vision that Dr. Saima has elaborated on. I would also like to remind you कि आपका जो ऊपर इसका टैब है ना टीम्स का, इसमें Q&A का एक ऑप्शन है. So if you have any questions, you can always type them in, and I'll try to take them and respond to them as we go along. Also, we will have some opportunities for interaction as I go through these slides. So be prepared for any thoughts, questions you may have, and we'll be more than happy to interact and engage with you. I want it to be very two-way communication, so you're most welcome. अब सबसे पहली चीज़ डॉक्टर साइमा ने बताया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, जिसका बुनियादी सा मतलब ये है कि हर वो शख्स जिसको बुनियादी हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहिए हों, चाहे वो प्रिवेंटिव हों, प्रोमोटिव हों, ट्रीटमेंट की हों, रिहैबिलिटेशन की हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, उनको मैसर होनी चाहिए और वो क्वालिटी की होनी चाहिए. अगर मैं बहुत यानी क्रक्स आपको बताऊं इस सारी बात का, और ये सब अलाइन है किस चीज़ के साथ, जो हमारे इंटरनेशनल ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं एट अ कंट्री लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लेवल पे, और उसके लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आलमी इदारा सेहत और तमाम इदारे काफ़ी एफर्ट करते हैं. लेकिन जैसे आपको पता है कि तमाम लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन एफर्ट्स को हमेशा ऑन ग्राउंड नतीजे वैसे नहीं निकलते जैसा कि एंटिसिपेट किया जाता है या इस तरह की बड़ी कमिटमेंट्स में बात की जाती है. अब हम एज अ प्रोफेशनल कहाँ खड़े हुए हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम वो तरीके इख्तियार करें जो हमें लगता है कि फिजिबल होंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट में, जिनके ज़रिए हम वो बड़े विजन अचीव कर सकते हैं. सो मिसाल के तौर पे आलमी इदारा सेहत ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वो एक बड़ा गोल है जिस पे सारे मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए कि वो हेल्थ की डिस्पैरिटीज़ को कम करें और सारे लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात मैसर हो सकें उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनकी सेटिंग्स में. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने काम करते हुए इनके साथ एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पैकेज बना लिया. अब क्योंकि हमारा शोबा जहनी सेहत का है, और जहनी सेहत के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक मेंटल हेल्थ गैप इंटरवेंशन गाइड है जो कि आलमी इदारा सेहत ने, WHO ने डेवलप की है. और ये किस चीज़ के लिए? ये इस चीज़ के लिए, जैसे डॉक्टर साइमा ने एलेबोरेट किया, कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं हैं. तो ये आलमी इदारा सेहत ने बनाई ही इसीलिए
कि आप अपने जो नॉन स्पेशलिस्ट हैं अदर देन साइकियाट्रिस्ट आप लोगों को ट्रेन कर सकें और वो कम्युनिटी सेटिंग्स में प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लेवल पे लोगों को जहनी सेहत की सहूलियात फराहम कर सकें जो कि मियारी हों। तो दिस इज़ द होल विजन अबाउट दिस एंड द प्रोग्राम। अब हम ये मेंटल हेल्थ गैप क्या कहते हैं? अगर आप में से कुछ लोग अवेयर होंगे कि बर्डन ऑफ डिजीज़ का एक कॉन्सेप्ट है, यानी जब हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी हेल्थ कंडीशंस को देखना चाहते हैं तो हम जिस कंस्ट्रक्ट में उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं वो बर्डन ऑफ डिजीज़ कहते हैं। और जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ है उसमें 13% जो शेयर है ना आउट ऑफ 100% वो मेंटल न्यूरोलॉजिकल और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के, विच इज़ अ बिग शेयर। लेकिन इसमें से एक और जो बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि इन 13% में से 90% तक लोगों को ना वो ट्रीटमेंट मिलती ही नहीं है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। यू आर ऑल डॉक्टर्स, यू आर ऑल प्रैक्टिसिंग, आप सारे इस चीज़ के गवाह होंगे कि जब किसी को कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो इट बिकम्स अ रियल स्ट्रगल कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किस तरह कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर हो, किस तरह एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिल सकें। अब बेसिकली यही वो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट गैप है जिसको हम ब्रिज करना चाहते हैं और यही इस कोर्स का गोल है। अब है क्यों ये मेंटल हेल्थ गैप? अब आप ये देखें कि सिर्फ 1% ऑफ ग्लोबल हेल्थ वर्कफोर्स जो है ना वो मेंटल हेल्थ में है। और उसके अंदर भी मतलब अगर आप देखें तो साइकियाट्रिस्ट सिर्फ 8% हैं, 43% नर्सेज हैं, 3% सोशल वर्कर हैं, 7% साइकोलॉजिस्ट हैं, 1% ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और 33% अदर्स हैं। यानी कि एक तो क्या मेंटल हेल्थ में है ही नहीं वर्कफोर्स। और उस 1% को भी आप ब्रेक डाउन करें तो आपको नज़र ये आता है कि एक्चुअली जो हमें इतने सारी टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट। अब ये दूसरी तरफ ये सीसॉ आपने देखी है जो बनी हुई है तस्वीर में, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वो उन कंट्रीज में रहते हैं जहां पे 1 लाख लोगों के लिए एक साइकियाट्रिस्ट है। अब इसके ज़रिए हमें क्या बात पता चलती है कि इफ़ वी थिंक ऑफ कि हमें इतने साइकियाट्रिस्ट प्रोड्यूस करेंगे जो लोगों को जहनी सेहत की सहूलियात फराहम कर सकें तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यानी आधी दुनिया में 1 लाख लोगों के लिए एक साइकियाट्रिस्ट है। तो हाउ डू वी रियली ब्रिज दिस गैप? हम कैसे ये कवर करें? दिस इज़ वेयर वी कम इन कि हम प्राइमरी केयर फिजिशियंस को ट्रेन करें और उन दूसरे हेल्थ वर्क फोर्सेस को ट्रेन करें जो इस काम को पूरा कर सकें। अब दूसरा एक सवाल, एक तो ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, दूसरा पैसों का मसला है। अब जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है हाई इनकम कंट्रीज में वो $50 पर पर्सन पर ईयर मीडियन एक्सपेंडिचर है जो वो लोग करते हैं, जबकि हमारे जैसे मुल्कों में लेस देन $2 पर पर्सन पर ईयर। आजकल डॉलर 270 रुपए का है। तो अगर आप इसको वो भी लगा लें तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 500 और 20 रुपए या 40 रुपए पूरे साल पे एक मीडियन एक्सपेंडिचर है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि इस सूरत में हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की सर्विसेज क्या मैसर होंगी किसी को भी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको हमने ब्रिज करना है। और दिस इज एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ दिस कोर्स कि ना हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आने लगे, ना हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसे आने लगे हैं कि हम इस तरह की सर्विसेज को ला सकें और डेवलप कर सकें। तो दिस इज वेयर वी वांट टू रियली ट्रेन दिस एंड दिस कोर्स कम्स इन। अब हमारे पास एक गाइडलाइन आ गई जो कि WHO की है, आलमी इदारा सेहत की है, जिसे हम मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम कहते हैं। और इसकी एक हमने ब्रीफ वीडियो इसमें शामिल की है which will give you an overview of कि जो मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम है ये है क्या। आई रिक्वेस्ट माई IT टीम कि वो वीडियो आपके लिए प्ले करें। इट्स अ 7 minute वीडियो एंड देन आई स्टार्ट इंटरेक्शन विद यू अगेन। प्लीज प्ले द वीडियो। 50 million people suffer from epilepsy. Depression haunts and hurts 150 million people. Almost 3,000 people commit suicide every day. In low and middle income countries, 75% of people do not get the mental health services they need. To reduce this huge gap, WHO developed the Mental Health Gap Action Programme, or MHGAP, in 2008.
An epilepsy project in rural China integrated a simple model of epilepsy control into local health systems and achieved excellent results. We trained mainly the doctors working in the county and township level. So we have to educate them first. And also we have the public education for the people, let them to know what is epilepsy. 话说白了就是没有经济来源收入，要供养的娃子上大学的呢，就是两个人奋斗。也就话说回来，这属于说打3天睡1天，贫富反的轻得很嘛。01年吃这个药，吃上相当好，在这个10个月这个基础上，家庭一日好一点，也能出个做生意了。 那就说是没吃药之前呢，不种干啥都不敢走。 The trial project that started in 6 provinces has now been extended to 15 provinces, and tens of thousands of epilepsy sufferers have been treated. Georgia and Cameroon are now also training primary care physicians on how to diagnose and treat patients with epilepsy. MHGAP, scaling up services for mental, neurological and substance use disorders. Services like the Cape Mental Health Project in Cape Town, South Africa, which offers care for children with intellectual disabilities. We provide training in basic, call it basic physiotherapy, seating, positioning, feeding the children. That can be put in place. Those are skills that can be acquired. This is my daughter Tara. She's intellectually disabled. When I started working with the cerebral palsy children, you just have a kind of a bond. Each child responds differently, but if you know how to bond with that child, it's just beautiful. It just all comes together and you will know exactly what to do exactly at the right time. MHGAP, tackling priority conditions like alcoholism, child mental health disorders, dementia, depression, drug abuse, epilepsy, psychosis, suicide. In India particularly, following the failure in exams, almost 2,300 students commit suicide. So we have taken this as an issue, and we are very happy to say that the Tamil Nadu government has made a new rule in which a student who has failed in the 12th exam can write the failed subjects within 1 month after the results so that he doesn't lose a year. Low-cost suicide prevention programs like Snehas are now being initiated in other parts of India, China and Sri Lanka. The Schizophrenia Research Foundation, or SCARF, is also based in Chennai in South India. A WHO collaborating centre, SCARF provides care for a range of chronic mental disorders. I think we eminently fit into this pattern of a low resource setting, working towards delivering mental health care to just about everybody who comes within our fold. We have developed a rehabilitation strategy which is fairly tailor-made for each person. The focus could be on training of social skills. How do you get into the bus? How do you buy a ticket? How do you go to the bank? How do you draw your money? Or it could be on getting a job. My name is Suresh. I'm working as a manager in a public limited company in the Department of Quality Assurance. My case manager, she maintains my records. I tell her about my problems. She discusses with the doctor and they give me medicine. And I'm normal now. Thanks to my doctors. MHGAP, establishing productive partnerships, reinforcing commitments with existing partners, attracting and energising new partners. WHO's goal is to see that mental health is integrated into primary healthcare systems across the world. We have the knowledge. Our major challenge now is to translate this into action and to reach those most in need. We need to change policy, practice and political perspectives. Governments across the world need to see this as a health priority.
The cost of providing basic care for these priority conditions is as low as $2 per person per year in low-income countries. It's not about the money first, it's about the commitment, the love, the compassion, the will to make a difference. And I think it's the belief that you can make a difference. 1 in 4 people will be affected by a mental, neurological and substance use disorder at some point in their life. These stories clearly show that with proper care, assistance and medication, millions can be treated. My desire is that every Indian should be able to go somewhere close to his home and get mental health care. They didn't ask to be here, they didn't ask to be like this, so they can't say, I need your help, so I'm giving my help to them in the best way that I can. 好了，也就是说基本上恢复的好了，所以心里确实就是说这个也是相当好的，这就是。 There is no health without mental health. Thank you, Dr. Huda. आई होप कि इस वीडियो ने आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया होगा कि व्हाट वी रियली वांट टू अचीव, और यू आर द पीपल एंड यू आर द पार्टनर। और जैसे इसमें नज़र भी आया, ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज ऑफ रिकवरी और होप है। और यहाँ पे ये बात नहीं की गई कि हमें बहुत बड़े बड़े नए अस्पताल बनाने हैं, हमें बहुत बड़े बड़े कोई स्पेशलिस्ट ट्रेन करने हैं, बल्कि विजन ये है कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ केयर की सर्विसेज वहाँ पहुँचा सकें जहाँ वो रहते हैं, और उनको नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकें उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में। दैट इज़ व्हाट इज़ द क्लियर मैसेज। और आपने देखा ये मिसालें इंडिया से थी और इस तरह की कॉन्टेक्स्ट से थे जो बहुत हाई फाई नहीं है। ये कोई वेस्ट के बड़े बड़े अस्पताल नहीं है, बल्कि हमारे जैसे प्राइमरी केयर सेंटर्स ही हैं, और हम और आप जैसे ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली द विजन दैट वी वांट टू अचीव विद यू, or this is where we need your partnership. So we will try and bring resources and opportunities to you, but you are the people who are going to make it happen. और एक जो आप समझ लें कि ख्वाब है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जब तक हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, तो जिस तरह ये WHO ने रिकवरी की स्टोरीज और होप की स्टोरीज शेयर की है ना, हमारे पास आपकी कॉन्टेक्स्ट और आपकी सेटिंग्स और आपकी प्रैक्टिस से स्टोरीज होनी चाहिए, एंड वी शुड बी एबल टू पुट टुगेदर अ सिमिलर वीडियो जिसमें हम आप जो लोग इस वक्त 100 के करीब ऑनलाइन इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं और 200 के करीब जिनकी एप्लीकेशन हमें आई हुई हैं, we should be able to put together such videos from your context and settings where you could also humbly say that you have been able to contribute positively to the lives of people in your context and your settings, inshallah. So this is the pray, this is the hope, and this is the vision, and यही वो चीज़ है जिसके लिए हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब आप ये देखें कि जो प्रोमिनेंट कंडीशंस आपको प्राइमरी केयर में या आपकी अपनी कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग्स में नज़र आती हैं, उसमें डिप्रेशन होता है, साइकोसिस होता है, बच्चों के जहनी सेहत के मसाइल होते हैं, रवैयों के मसाइल होते हैं, ओल्ड एज में डिमेंशिया के प्रॉब्लम्स होते हैं, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स होते हैं, सेल्फ हार्म सुसाइड होते हैं, और कुछ इस तरह जो दूसरे फिजिकल या साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स होती हैं। और कुछ बुनियादी असूल हैं प्रैक्टिस के और केयर के जो हमें पता होने चाहिए। I'm thankful to Dr. Syed Osama Tahir, who has put in a very detailed comment on in the Q&A section, and I would encourage you all कि आप उसे पढ़ें भी और देखें भी, और when we open the floor for discussion, so I would like you people to also comment on कि what is your motivation for this program, और अगर तो वो इस वीडियो के जो की messages हैं उनसे aligned है, so that is what we really want to achieve, and this means that we are off to a very great journey inshallah together. अब मैं चाहता यही हूँ कि आप अपना रोल पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। आप करेंगे ये कि अपना जो रेज हैंड है, रेज का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा ना हाथ का अपने टैब्स में, आप ना वहाँ से रेज कर सकते हैं, तो हमारे पास फ्लैग अप हो जाएगा, हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं, एंड यू कैन देन शेयर योर एक्सपीरियंसेस
of what is the role of general physicians in managing mental health problems. तो I would like कि आप लोग volunteer करें और अपने experiences को share करें. Please keep it brief, keep it precise. और जो भी आपके experiences हैं उनको I would want कि हम इसके ऊपर मतलब now that we are formally starting this course, so we start from there. So anyone who would like to volunteer first? डॉक्टर राबिया, पहले हैं डॉक्टर इमरान. यस डॉक्टर इमरान, आपको अनम्यूट करें, प्लीज गो अहेड. बिफोर यू स्टार्ट आप ना अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा. आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड देन योर एक्सपीरियंस. डॉक्टर इमरान, मैं वहाँ से हूँ. प्रैक्टिस मैं करता हूँ अपना इस्लामाबाद दाहा में F6 में हमारा ऑफिस है. तो यहाँ जो मैंने देखा है ना, मैं जिस तरह आजकल हमारी सोसाइटी में ये सब्सटेंस एब्यूज बहुत ज़्यादा है, जो उनके साइकेट्रिस्ट अवेलेबल होता नहीं. इस तरह मेरे पास एक केस आया ये आइज के हवाले से. शी वाज फीमेल, देन आई ट्रीट हर, देन उसके हस्बैंड आए, और देन एक गांव से मुझे कॉल आई अबाउट सब्सटेंस एब्यूज. तो मेंटल हेल्थ के केसेस बहुत ज़्यादा जीपी क्लिनिक में रिपोर्ट होते हैं. तो अपनी अप्रोच के मुताबिक आई ट्राई माई बेस्ट के, तो देन दे रिकवर. या स्पेशली ये फीमेल्स के डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि लो मूड. हम घूम के कोई कभी आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, कभी क्या देते हैं, लेकिन वो मसला मेंटल होता है, उसकी तरफ हमारा फोकस ही नहीं होता. अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक मतलब वेल सेटल्ड फैमिली की खातून आई और सब कुछ था, बट शी वाज अनवेल. उसका मूड लो रहता था. देन मैंने अपनी अप्रोच के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थोड़ा एंजियोलिटिक, देन SSRI, और आफ्टर 1-2 months व्हेन शी मेट मी अगेन, तो वो बहुत ज़्यादा उसका मूड अच्छा था और शी वाज वेरी हैप्पी. दैट आई गाइड हर अबाउट द एक्सरसाइजेज और बला बला. तो हम एज ए जीपी इस साइड को टोटली इग्नोर कर बैठते हैं मेंटल हेल्थ को. हमारा फोकस वही होता है बॉडी पेन पर, चेस्ट पर, थ्रोट पर. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इमरान, थैंक यू सो मच. और आपने इश्यूज भी आइडेंटिफाई किए और आपने वो एरियाज भी आइडेंटिफाई किए जिनके ऊपर हम मिलके काम कर सकते हैं. सेकंड इज डॉक्टर राबिया. डॉक्टर राबिया, प्लीज अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइए एंड योर कमेंट. डॉक्टर राबिया को अनम्यूट कर दें. डॉक्टर राबिया, कैन यू हियर मी? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं. Can you hear me? Assalamu alaikum. We can hear you now. Ji, please go ahead. All right. Ji, Assalamu alaikum. Dr. Rabia Nasi, basically graduated from Shifa College of Medicine, and I did my Master of Neurosciences from University of Science Malaysia. My interest, currently I'm working at Rawal Institute of Health Sciences in Public Health Department. My interest in neurosciences or mental health problems is of personal nature, as well as the fact that I want people to be aware of these problems, because first of all, I faced this problem with my son who had dyslexia, and I being a doctor and my husband being a pilot, we were unable to find help for my son. He's doing fine now, but I know the struggle that I went through, and because of that child, because of my child, I met other mothers who were struggling and suffering, but there was no one they could go to, because if they see a doctor, the doctor tells them the child is fine, whereas the teachers tell the mother the child is not fine. So where do they seek help? Or jo psychologists hain, they cannot really help them out as well. Then uske baad, secondly, as the other fellow mentioned, because depression is very common, we see that everywhere. I also saw a female, 55 years old, a Baloch mother, very well off, financially settled and everything, but she was unable to have the motivation to live from day to day. That was hard until I put her on an antidepressant, and then she started feeling better. She did start feeling better, and that was also because she had depression and she had no awareness regarding that. I would like to add to this thing one comment.
that as a mother, as a teacher, as an educator, I have seen that habits, then dementia, depression, loss of focus, loss of concentration, attention deficit disorders, all of these can be controlled. People can be helped only if they are aware of that. And also only if the doctors who are treating them are aware of these problems. Because we do not take good histories, do not look into what actually is bothering the patient, and then we overlook these problems. But I really think that this can be helped. And that is also the reason I went for a master's in neuroscience, and I really want to contribute. And I really love your idea. I would love to contribute, inshallah. Thank you. Thank you so much, Dr. Rabia. I think कि आपने बहुत अच्छा एक अहम एरिया को टच किया जो कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन रियलाइज द प्रॉब्लम, बट इट इज़ द डॉक्टर्स हु फेल देयर पेशेंट्स एक्चुअली. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज अवेयरनेस एंड इंटरवीन अर्ली, एंड वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू सी कि हम इसको किस तरह बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकते हैं. So thank you so much. Dr. Sadia Khalik, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर सादिया खालिक हूँ. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ जहाँ पे मेरे पास ज़्यादातर इंजीनियर्स आते हैं. और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की कि हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, उनको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, और वो अंदर ही अंदर इस बात को लेकर जो है ना फिरते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ भी इफेक्ट होती है, उनका काम भी इफेक्ट होता है. और एक और चीज जो नोट की कि जो हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जिस तरह मेरे पास इंजीनियर्स जो आते हैं, उनके बच्चों में ऑटिज्म और इस तरह की जो है ना मेंटल डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, और जिसको वो बहुत देर से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों का बहुत सा कीमती टाइम जो है वो निकल जाता है, जिसमें हम उनको बहुत अच्छा जो है कोई पॉजिटिव उनको अपब्रिंगिंग कर सकते थे, उनको पॉजिटिव फीडबैक्स देकर उनके पेरेंट्स को. और ये चीज जो है ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मरीज खुद डिस्कस करे कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए कि मरीज उसको अपना हमदर्द मानकर उससे भी बताए, और उसके लिए ना डॉक्टर को उसके साथ बात करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डॉक्टर्स इतना नहीं देते, स्पेशली जीपीस, क्योंकि बाहर रश लगा हुआ होता है. तो एक प्रैक्टिस जो मैंने बनाई है कि मैंने अपने हर पेशेंट को सुनना है, और उस सुनने में ही आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि मरीज किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं घर में और जॉब पर. और उससे वो डिस्कस करने से और थोड़ी बहुत मेडिसिन उसको देने से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसके अंदर चेंजेस आती हैं. तो मैं चाहूंगी कि मैं आपके इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली कोई अच्छा दे सकूं, और अपने जो मेरे पेशेंट्स हैं उनका जो है बहुत अच्छा उनको भी मैं ट्रीट कर सकूं, और उनकी फैमिलीज को भी जो है मैं वो एनरोल कर सकूं और उनको इसकी अवेयरनेस दे सकूं. Thank you so much, Dr. Sadia. I'm very pleased and humbled by the very insightful comments जो अभी तक तीनों आप डॉक्टर्स ने शेयर किए हैं, और ये equally important हैं और equally valid हैं. And we are very much looking forward to working with you. Now we have Dr. Atiya Khuda. Go ahead, Dr. Atiya. Ji, Assalamu alaikum. I am Dr. Atiya Khuda and I'm from Karachi. Currently, I'm working for an NGO, which is a private organization here in Karachi. And I'm a specialist family physician. And since I myself worked and am working as a primary care physician, so what I feel like that is something which is of pivotal role, pivotal importance. And the role of family physician is really important in this respect. Coming back to the point, actually, I endorse my fellows. History is first and foremost important चीज होती है हमारी consultation में, and empathy is again something which हम जो है अपने because of the quantity of number of patients की वजह से हमारी quality affect होनी शुरू हो जाती है, and hence we somewhere leave behind our empathy.
तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एम्पथाइज करूँ अपने पेशेंट्स को एंड रियली जब हम इस तरह से करते हैं तो वी गेट टू नो देयर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट दे वांट इज द लिसनिंग ईयर्स जो उन्हें नहीं मिल रहे होते समवेयर so they come out of their homes basically major part जो हमारी जो chunk होता है वो population के जो women आती हैं बच्चे आते हैं they want to vent out so for that reason and another thing which is of real importance is the community engagement क्योंकि हम वहाँ 24 hours हम डॉक्टर अतिया, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। आई डोंट नो बाकी लोग सुन पा रहे हैं आपको या नहीं। कैन यू हियर मी डॉक्टर अतिया? Yes, I can hear you well. Am I audible now? जी जी जी। So there was some, I think, internet disruption. You are now audible. Please go on. So the second point which I want to emphasize on is the community engagement, which I think because as a primary physician, we cannot give 24 hours to a community. We just go there for a few hours and come back. लेकिन अगर हमारी community के साथ engaged होंगे हम and we find out and identify some people who can really help us, तो वो अपनी क्योंकि sometimes जैसे मैं face करती हूँ कुछ language barriers भी आ रहे होते हैं, वो जो चीज़ होती है वो वहाँ पे उसको हम cover कर सकते हैं. And again counseling. मेडिसिन पे जाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लेवल ऑफ सिवियरिटी को आइडेंटिफाई करें. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे जस्ट गेट हील्ड बाय गुड काउंसलिंग. सो दिस इज ऑल व्हाट आई कुड से राइट नाउ. थैंक यू. डॉक्टर अतिया, स्पॉट ऑन। आपने जो दोनों तीनों बातें की, एम्पैथी, काउंसलिंग, spending time with the patient, a sympathetic ear, I think these are all the key things that a family physician or a general physician can do. And I absolutely agree कि ये वो चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ में पेशेंट्स को ज़रूरत होती है और अनफॉर्चुनेटली सबसे कम एम्फसाइज किया जाता है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू हियर ऑल योर कमेंट्स एंड इनसाइट्स, and I think this is off to a great start, inshallah, working with you all. Now, moving on to the next slide, which generally summarizes कि इसकी क्या अहमियत है कि हम मेंटल हेल्थ को साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से के अलावा प्राइमरी केयर में, कम्युनिटी में, फैमिली फिजिशियन और जनरल फिजिशियन के ऊपर क्यों इसको देखें। तो जैसे डॉक्टर साहब ने एक लिखा भी कमेंट में कि एक तो ये कि बर्डन जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का वो बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ मच बियॉन्ड जो हम फॉर्मल डायग्नोसिस कहते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो कि और साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके तौर पे वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जीआईटी इश्यूज होते हैं, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स, कार्डिक सिम्टम्स और इस तरह की सारी चीज़ें। दूसरा यही कि जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं बहुत इंटरवोवन है, और क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में और सेटिंग्स में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोग इसको फिजिकल प्रॉब्लम के तौर पे ही पहले प्रेजेंट करते हैं। तो आप कितने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अपने पेशेंट का, उसकी फैमिली का, और आप इनको डील करते हैं, इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन अ जनरल फिजिशियन और अ फैमिली फिजिशियन। तीसरी बात, जैसे हमने देखा कि जो स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ सपोर्ट है वो दैट इज़ नॉट अवेलेबल। तो द प्रॉब्लम इज दैट पीपल विल कम टू यू एज फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स for their problems, and if you are able to deal with them in a appropriate manner, this will change their lives. तीसरी बात ऑब्वियसली ये है कि स्टिग्मा इज़ अ बिग बैरियर। कोई भी साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, कोई भी साइकाइट्रिस्ट से जाके इलाज नहीं कराना चाहता। तो जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस होते हैं, जो जीपीज़ होते हैं, लोग उनके पास खुल के आते हैं, घर की भी सारी बातें बताते हैं, सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, और वो खुद रिलेट भी कर लेते हैं कि जो मेरी ये प्रॉब्लम है इसकी वजह एक्चुअली घर की कोई ऐसी डायनामिक्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। चौथा, ऑब्वियसली एज अ जीपी एक बड़ी प्रिविलेज पोजीशन होती है आप लोगों की अपने कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग्स में, जहां आपको ना फैमिली में एक बड़े के तौर पे देखा जाता है और आपकी वैल्यू होती है। अगर पेरेंट्स हैं ना तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब ये मेरे बेटे को समझाए ना, अगर बच्चे होंगे तो वो पेरेंट्स के मुताबिक कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे पेरेंट्स को ये बात बताएं। या तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और हम शायद क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मुल्क में कानून तो उतने तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता, सोशल सर्विसेज भी नहीं होती, तो ह्यूमन राइट्स का हमारा उस तरह का एलिमेंट तो है नहीं कि हम लीगल रिकोर्स पे जाएं। तो हम जो कर सकते हैं वो यही है कि एज अ डॉक्टर्स जो हमें एक सोशल प्रिविलेज हासिल है, हम उसको यूज़ करें लोगों को हेल्प करने के लिए। और ऑब्वियसली आपको पता है हमारे साइकाइट्रिस्ट बहुत महंगे हैं, उनके पास अगर एक दफ़ा जाएं तो
दूसरी दफ़ा जाने की हिम्मत ही नहीं रह जाती और सकत ही नहीं रह जाती। तो और आखिरी चीज़ जो है, वो ये कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना ओवरऑल वेल-बीइंग को और हेल्थ आउटकम्स को प्रमोट करता है। जैसे प्रोफ़ेसर साइमा ने इनिशियल स्लाइड्स में शेयर किया था कि हेल्थ और वेल-बीइंग के आउटकम्स लिंक्ड है मेंटल हेल्थ के साथ। और ये सारी चीज़ें प्राइमरी केयर में और जीपीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो दीज़ आर ऑल द गुड रीज़न्स दैट वी शुड इन्वेस्ट आवरसेल्व्स इन पीपल लाइक योरसेल्व्स, जो कि हैं मौजूद, जिनके साथ काम किया जा सकता है, जो मोटिवेटेड हैं, जो कमिटेड हैं, जो कम्युनिटी में हैं और जो एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं सर्विसेज उनको। अब इस सारे विजन के तहत हमने ये सर्टिफिकेट कोर्स मेंटल हेल्थ और रिसर्च का इंटीग्रेट किया इनटू द डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन। अब इस फ्लो डायग्राम में अगर आप देखें, तो अगर हम बहुत भी साइंसी तरीके से देखें, तो हमें यही समझ आएगी कि यूएचसी जो है वो बहुत टेक्निकल ज़मरे में ना 5 प्लेटफ़ॉर्म्स आइडेंटिफ़ाई करता है। पहला प्लेटफ़ॉर्म कम्युनिटी लेवल है, दूसरा प्राइमरी है, तीसरा फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल है जो डीएचक्यूज़ टाइप हो सकते हैं, फिर रेफरल हॉस्पिटल है जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं और 5वां जो प्लेटफ़ॉर्म है वो पॉपुलेशन बेस्ड है। अब ये इसमें आपने देखा हमने आपको यू के तौर पे प्लेस किया क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ जिस तरह ये सिस्टम काम करता है, तो एवरीबॉडी कम्स टू अ जीपी और अ प्राइमरी केयर फिजिशियन और फिर आपके ऊपर होती है सारी ज़िम्मेदारी कि आपने उस पेशेंट को किधर लेके जाना है। आप उसको उधर ही कम्युनिटी में रहते हुए भी मैनेज कर सकते हैं, आप उसको फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल या आप उसे कम्युनिटी बेस्ड दूसरे सपोर्ट की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो इन ऑल माय बेस्ट जजमेंट, इन ऑल आवर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारा ये ख़्याल है कि अगर हमने पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की कवरेज को ट्रीटमेंट की इम्प्रूव करना है, सो दिस इज़ थ्रू यू द जीपीज़ एंड द फैमिली फिजिशियंस दैट वी कैन अचीव दिस। अच्छा, अब सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। आई एम सॉरी ये थोड़ा-सा लैग था। अब इसमें हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ है, आलमी इदारा सेहत का जो कंट्री ऑफिस पाकिस्तान का है, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, एक इदारा जो कि इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है प्रोग्राम को। हम खुद एट द शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी अलोंग विद द फैकल्टी ऑफ फैमिली मेडिसिन and the Central Institute of Family Medicine. So this is the core team of people who are behind this vision and working with you. लेकिन जो सबसे अहम पार्ट है ना इसमें, इसे हम उर्दू में आम ज़बान में गरारियाँ कहते हैं ना, जो मैकेनिक की ज़बान में है, तो ये 3 गरारियाँ हैं। अब आप इसमें देखें कि एक है जो बहुत बड़ी साइंस का सारा गरारी है, एक है जो ये कोर्स है, लेकिन जो सबसे बड़ी गरारी है ना, जो बाकी 2 गरारियों को चलाएगी, जिससे कि इंजन चलेगा, वो आप हैं। ज़ाहिर है अगर हम ये सारा इन्वेस्ट करें, एफर्ट करें और आप उसको जिधर लेके जाएँगे, ये फिर प्रोग्राम का इम्पैक्ट उधर ही आएगा। अगर वो नहीं होता, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ स्ट्रगल और ये एफर्ट जो है विल नॉट बियर एनी फ्रूट्स। सो आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ एम्फसाइज़ योर रोल इन दिस कि जो भी इम्पैक्ट आना है, वो आपके काम से आना है, बाकी हम सारे आपसे रिलेटेड एसोसिएटेड एंटिटीज़ हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का कि हम आपको सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेन करें ताकि आपकी नॉलेज और स्किल्स बिल्ड हों और आप जो प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और मैनेजमेंट स्लैश रेफरल ये कर सकें अपनी प्राइमरी केयर सेटिंग्स के अंदर। सो दैट इज़ व्हाट वी रियली वांट टू अचीव और हम इमेजिन ये करते हैं कि इंशाल्लाह ओवर टाइम ये ओवर द कंट्री हमारा एक फुल नेटवर्क बन जाएगा जिसमें आप लोग मौजूद होंगे, जिनके ज़रिए से हम इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होंगे और हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे इम्पैक्ट अपना। अब ये आपका कोर्स कैलेंडर है। यू स्टार्टेड दिस कोर्स इन जुलाई। आपने ऑलरेडी डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन के कोर्स के तौर पे 7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ऑनलाइन अटेंड कर लिए हैं। कैन आई एक्चुअली आस्क कि अगर आप लोग हाथ रेज़ कर सकें ऑनेस्टली कि आप में से कितने लोगों ने ये 7 लेक्चर सुन लिए हैं और अटेंड किए हैं, जो ऑलरेडी डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन के कोर्स के तौर पे हैं? 1, 2, 3 वेरी नाइस। वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 10 ज़बरदस्त। 11 ये सारे ईमानदारी से बता रहे हैं ना? 12 ये 12वां जो थे वो आके चले गए, ईमानदारी पे डाउट हो गया होगा उन्हें। 13 प्लीज़ अपने हैंड रेज़ ही रखिएगा उसमें ताकि हम देख सकें कि आप में से कितने लोगों ने जो ऑनलाइन अभी लेक्चर अवेलेबल है डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन का, उसमें से मेंटल हेल्थ के अटेंड किए हुए हैं।
हाँ ठीक है। सो कुछ डॉक्टर साहिबान बता रहे हैं कि उन्होंने 7 सारे नहीं किए, लेकिन कुछ उसमें से किए हुए डॉक्टर राबिया, डॉक्टर हिना। तो 18, 19, अच्छा। सो ऑलमोस्ट वी आर 100 पीपल ऑनलाइन। तो अगर 20% लोगों ने भी किए तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आपके पास वो ऑनलाइन रिसोर्स मौजूद है, वी विल लुक इनटू दैट एज वेल। प्लीज़ उसका मेक यूज़ ऑफ इट, लुक एट दोज लेक्चर्स, बिकॉज अब होगा क्या यहाँ से आगे कि वी हैव प्लान्ड, यू कैन लोअर द हैंड्स नाउ। थैंक यू। मुझे आइडिया हो गया कि तकरीबन 20% लोग हैं जिन्होंने वो सारे किए और कुछ लोगों ने कुछ किए। तो वी कैन सी कि बाकी लोग आप कितना आपको सपोर्ट किया जा सकता है। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि हमने इससे आगे 10 सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जिनका शेड्यूल मैं आपको दिखाऊंगा, और वी वुड वांट कि आप इस रिसोर्स का फ़ायदा उठाएं और उन लेक्चर्स को अटेंड करें जो कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं। अब होगा क्या कि आपने ये लेक्चर्स अटेंड कर लिए, फ्रॉम अक्टूबर अंटिल दिसंबर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज 10 सेमिनार्स, जिसमें हम प्रायोरिटी कंडीशंस को और हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उसके साथ उनको अटेंड करेंगे। एंड देन इन जनवरी विल हैव अ रिसर्च वर्कशॉप, और फिर आप ये देखेंगे कि क्लिनिकल रोटेशंस हैं एक जो आपको साथ करनी है। सो दोज ऑफ यू जिनका 5 ईयर से कम क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ अटैचमेंट इन साइकाइट्री टू डू सम क्लिनिकल केसेस। तो ये आपको करना होगा, और उसके बाद यू विल डू अ क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम फॉर 6 मंथ्स, जिसमें आप एक्चुअली केसेस देखेंगे और हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपके साथ केस डिस्कशंस किया करेगी, जिसमें एक्चुअली केसेस आप लोग प्रेजेंट करेंगे, उसकी डायग्नोसिस, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी मैनेजमेंट प्लान, उसकी ट्रिकी केसेस, और हमारी फैकल्टी और हम लोग आपको हेल्प करेंगे ऑन आइडेंटिफाइंग कि व्हाट कुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो हेल्पिंग यू फाइंड आउट द रेफरल पाथवे। सो ये वो ग्रुप सुपरविजन मीटिंग्स हैं जो हम आपके साथ करेंगे, और जुलाई में इंशाल्लाह आपका फिर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, जब आपका फॉर्मल एग्जिट एग्जाम होगा, एंड देन you will get the certification. So this is how we have planned this course. If you have any comments, questions, thoughts, please put it in the Q&A section and we'll be more than happy to discuss them. तो कोर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं मेंटल हेल्थ के, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो 10 ट्रेनिंग सेमिनार्स हैं। सो प्लीज़ सी दिस कि अगर आपने ऑनलाइन मॉड्यूल नहीं किए हुए तो यू आर लूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ कंप्लीट देम while we do the next 10 seminars over the next 3 months. इमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 3 मंथ्स भी आप कर सकते हैं। और फिर आपका क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम होगा, रिसर्च वर्कशॉप होगी और क्लिनिकल रोटेशन होगी। वी थिंक बेस्ड ऑन योर मोटिवेशन, कमिटमेंट एंड विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, इट शुड एनेबल यू कि आप अपनी प्राइमरी केयर सेटिंग्स में मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स को अच्छी तरह ट्रीट कर सकें और जहां ज़रूरत हो रेफरल कर सकें। अब जब आपने मेंटल हेल्थ का ऑनलाइन मॉड्यूल किया है तो लेट्स प्ले अ क्विक गेम अभी। सो जो मॉड्यूल है उसके अंदर चले, गेम से पहले इस पे आ जाते हैं कि उसमें आपने जो लेक्चर्स थे वो एंजाइटी के थे, मूड डिसऑर्डर्स थे, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स के थे, साइकियाट्रिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं आपके डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन के क्लासरूम में। सो प्लीज़ गो थ्रू देम। मैं चाहूँगा ये कि मैं क्विक सा आपसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूँ। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है या बेसलाइन नॉलेज है, जस्ट टू असेस। तो नाइस गाइडलाइंस आपको पता है, यूके की नाइस गाइडलाइंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सेलेंस, यूके जो गाइडलाइंस देता है। आपके ख्याल में व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स एंड ओसीडी? फार्माकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल थेरेपी या कॉम्बिनेशन थेरेपी या कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट या जो कोमॉर्बिड मेंटल इलनेस है उसकी मैनेजमेंट हो? तो ए, बी और सी और डी 4 ऑप्शंस हैं। तो आप ये Q&A वाला जो चैट बॉक्स है इसके अंदर ए, बी, सी या डी से ऑप्शंस लिख सकते हैं इसमें। सो आई वुड बी वेरी कीन टू सी कि आप लोगों को हाउ डू यू सी दिस। डॉक्टर अजीज कह रहे हैं कि आपको चैट नहीं मिल रही। आप Q&A के सेक्शन में जाएं डॉक्टर अजीज, आपको Q&A के सेक्शन में जाना है, नॉट इन द चैट सेक्शन। अच्छा, आप सारे लोग कह रहे हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी ए, सारों ने ए कहा है। ये चीटिंग तो नहीं कर रहे, ऊपर वालों ने ए लिखा है तो आप सारे भी ए लिख रहे हैं। कुछ सोच के फर्क भी लिखे हैं। ओ, सी भी आ गए हैं, वेरी गुड।
कुछ ने कॉम्बिनेशन भी कहा है, बट फर्स्ट इज सी। सी, ये मेरे ए के कहने से तो नहीं आप लोगों को ख्याल आया कि सी होना चाहिए? हो सकता है ए ठीक हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली द आंसर इज सी। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ना, वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए और ओसीडी के लिए। लेकिन जाहिर है हमारे कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा चैलेंज इनकी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल नहीं होते। और अगर वो ना हो तो फिर आप कम्बिनेशन के तौर पे इसमें फार्माकोथेरेपी ऐड करते हैं। सो गुड वन। गोइंग टू द नेक्स्ट। चलने, अब आप लोग तैयार हैं दोबारा? अब हम नेक्स्ट के लिए जा रहे हैं। So which one of the following is a core symptom of depression? Lack of realization that one is having mental health problems, loss of enjoyment in activities that are normally pleasurable, fatigue, sleepiness, abnormal behaviors after having a seizure, using alcohol or other substances. तो आपके ख्याल में कोर सिम्टम क्या होता है डिप्रेशन का इनमें से? ए, बी, सी, डी। अच्छा जी, बी। ऑल ऑफ देम आर सेइंग बी। बी के अलावा किसी का कोई ख्याल है? All of them are going with B, which is the right answer. So loss of enjoyment, जिसे एनीहोडोनिया कहते हैं, जो नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज हों जो आपको प्लेयर देती हों, जब उनमें आपको जिंदगी में लुत्फ नहीं रहता, किसी काम में मजा नहीं आता, सो दोज आर द कार्डिनल साइंस के ये डिप्रेशन की बात है। जबरदस्त। चलें एक आखिरी। So which of the following cluster of symptom fits best with an episode of psychosis? Choose only one answer। यानी जो क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स जो साइकोसिस की एपिसोड होगी उसमें क्या क्या होगा? कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, टाइम प्लेस पर्सन के लिहाज से, फंक्शनल डिक्लाइन होना, बिहेवियरल चेंजेस, फॉल्स फर्म बिलीफ, लैक ऑफ रियलाइजेशन दैट वन इज हैविंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सॉरी, ये बी और सी जो हैं वो एक ही हैं, वो फॉर्मेटिंग में गलत हो गया है। persistent sadness, depressed mood, low energy and fatigue, malnutrition, frequent illness, problems with development। सो आप लोगों ने पहले ही गैस कर लिया है कि इट इज बी, विच इज वेरी नाइस। जबरदस्त। तो इससे पता ही चला कि आप लोग बड़े अटेंटिव होके और इंटरेस्ट से ये काम कर रहे हैं और इसे अटेंड कर रहे हैं, विच इज वेरी रीअश्योरिंग फॉर अस। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन दिस। तो अब एक तो ये बात थी जो मैंने आपसे पूछा कि पूछने की वजह जो थी कि आपने पहले लेक्चर्स अटेंड किए हैं या नहीं, उसकी एक वजह ये थी कि मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों की लर्निंग नीड्स क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आप लोग सीखना चाहते हैं इन दिस कोर्स, या जो हमने 10 सेमिनार्स आगे ऑर्गेनाइज करने हैं उनमें। तो डू यू हैव एनी इंसाइट्स, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने पहले वो सेशंस ऑनलाइन अटेंड कर लिए हैं, तो डू यू हैव एनी इंसाइट्स? मैं देख रहा हूँ कि 3 लोगों ने हाथ रेज किए हुए हैं। इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? नहीं। ओके, सो अब सिर्फ एक डॉक्टर, 2 लोग हैं, डॉक्टर राबिया एंड डॉक्टर समीना। डॉक्टर समीना, डू यू वांट टू से समथिंग? You can unmute yourself and go ahead, please. Dr. Samina, do you want to say anything? Then you can unmute yourself. Or Dr. Rabia, if you want to go ahead, you can also. Unmute me. All right. Okay, I raised my hand after you asked if we want what we want to learn or know more about. So I think as a doctor, we can all understand the drugs, the choice of drugs, and the guidelines related to that. Where I fail or where I struggle is when it comes to counseling or psychological tools. I think that would be helpful if you could give us an insight into psychological tools and where to get the basic ones which we can use. Not all, of course, because we are not psychologists and we are not trained for that, but some very basic tools that we can use to assess our patients. Thank you. Thank you, Dr. Rabia. This is well noted. और बिल्कुल ये जो हमने आपसे कहा है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स जो क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम है, उसमें we will actually provide you with the tools in the training so that you can do more structured assessments in your own context and see how the cases are progressing.
So this is well noted. Thank you. Dr. Maria, you can go ahead, please. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं वालेकुम सलाम। बेसिकली डॉक्टर राबिया के पॉइंट को बेसिकली आगे बढ़ाना चाहूँगी। सर जो गैप है बेसिकली वो पेशेंट को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं और हमें ट्रीटमेंट भी पता चल गई कि अच्छा हमने ड्रग्स ये देनी है। सर लेकिन यही वही जो डॉक्टर राबिया की बात के पहले बीच में जो ये हम कहते हैं जी अगर लाइन में चले तो पहले ये जो भी आपने भी क्वेश्चन किया साइकोलॉजिकल असेसमेंट या साइकोलॉजिकल उसकी होनी चाहिए सीबीटी जिसे कहते हैं। तो सर सीबीटी है क्या, हमें उसके बारे में कोई थोड़ी सी गाइडलाइंस मिले कि हमने कैसे करनी है, उसके क्या क्या टूल्स हैं। सर ये बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अच्छा फिर अगर किसी को हम साइकोलॉजिस्ट या किसी के पास हम रेफर करते हैं तो उनके वो एक तो सर वही वाली बात है, कॉस्ट वाली बात है कि कोई जाता नहीं है, जो जाता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो हमें कोई सर अगर आप एम्पावर कर सकें, ऐसे हमें ट्रेनिंग दे सकें कि हम ही पेशेंट को थोड़ी सी जो है ना उसकी सीबीटी कर सकें और हम ही उसको थोड़ा सा गाइड कर सकें। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, वेल नोटेड डॉक्टर मारिया, थैंक यू। नेक्स्ट इज डॉक्टर मोहम्मद इलियास। अस्सलाम वालेकुम। जी एक प्रॉब्लम ये है कि साइकेट्रिक मेडिसिन हम लिख तो देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये है कि हम फॉलो अप पे नहीं इनवाइट करते उनको, और इसमें फॉलो अप बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वीक के दरमियान कोई सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती है, कोई डेंजर सिचुएशन भी आ सकती है, हम बस लिख देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ना फॉलो अप का पता, ना उनसे दोबारा इंटरव्यू का मौका मिलता है। तो इस पर भी एम्फेसाइज करना चाहिए जीपीस को। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इलियास, दिस इज वेल नोटेड। एंड जब हम उस फेज में आते हैं तो विल डिस्कस के फॉलोअप को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर सादिया खालिक, प्लीज गो अहेड। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ जी। डॉक्टर सादिया अपने आप को अनम्यूट करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, मीनवाइल जब डॉक्टर सादिया अपने आप को अनम्यूट करती हैं, वी हैव डॉक्टर सैयद फारूक। आप प्लीज यू कैन टेक अ स्टार्ट। Sir, can you hear me, sir? Loud and clear, sir. सर मेरा इस कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद और जो मैंने अपनी ज़ात के एतबार से लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो थे जो मुझे प्रैक्टिकली एक डिफ़िकल्टी आई थी। मैं आर्मी में मेजर हूँ, डॉक्टर हूँ, और मैंने 3 साल शुमाली वज़ीरिस्तान में सर्व किया। तो मेरे जिस दिन मैंने यूनिट को ज्वाइन किया उससे 2 दिन पहले 3rd खुदकुशी हुई थी यूनिट में जवानों में से। तो मेरे जो ज्वाइनिंग इंटरव्यू था उसमें कमांडेंट ने मुझे कहा कि डॉक्टर आई डोंट वांट एनी खुदकुशी इन द यूनिट। तो मैं तो हैरत से उन्हें देखना शुरू हो गया। यूनिट की स्ट्रेंथ उस वक्त थी ऑलमोस्ट सारे विंग्स मिला के 5000 और मैं अकेला डॉक्टर था उनके लिए। तो अब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था कि आई डोंट वांट एनी खुदकुशी इन द यूनिट का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो हर प्लटून के ऊपर जो एक जेसीओ होता है उसकी हेल्प से हमने पूरी यूनिट के अंदर कोई 18 के करीब केसेस को आइडेंटिफाई किया। डिप्रेशन के थे, बाइपोलर के थे, कुछ एंजाइटी वाले भी थे और इस तरह, और उनको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर किया। उनको कुछ उस वक्त समझ नहीं आती थी और अंदों में काना राजा मैं ही जो है एक मेडिकल एडवाइजर था अपने कमांडेंट का, और वजीरिस्तान में ज़र्ब अज़ब उस वक्त चल रहा था। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई कि मैं ज़ाती तौर पर उनका क्या कर सकता हूँ पेशेंट्स का। तो मैं उनका ट्रीटमेंट को कोऑर्डिनेट करने के अलावा और उनको लंबी सिक लीव पे रखने के अलावा और कमांड को ये कहने के कि इनकी रात की गार्ड ड्यूटियाँ ना लगाएं, इनको वेपन वाली ड्यूटियाँ ना दें, इसके अलावा मुझे तो समझ नहीं आती थी कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। वो हार्ट या पेशावर में साइकेट्रिस्ट से उनकी दवाइयाँ चल रही होती थी। तो उस वक्त मुझे 2 चीज़ों की कमी महसूस हुई। एक अपनी ज़ात के एतबार से कि मुझे तो इनका कोई इनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी बिल्कुल भी नहीं करनी आती, कोई काउंसलिंग नहीं करनी आती, एक तो ये चीज़। और दूसरा मुझे बड़ी कमी महसूस हुई कि क्या ऐसे छोटे-छोटे या बड़े-बड़े स्टेप्स यहाँ पे इख्तियार करूँ, क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान के तकरीबन 1/4 एरिया में वो यूनिट फैली हुई थी और 5500 उसकी स्ट्रेंथ थी।
कि क्या छोटे या बड़े स्टेप्स हो सकते हैं कि जिनसे इनकी कोई मोरल बूस्टिंग हो जाए, क्या इनके प्रिवेंशन के क्या स्टेप हो सकते हैं। तो वो इधर उधर बहुत टकरें मारी लेकिन कुछ समझ ना आई। फिर इस दौरान 3 साल गुजर गए, खैर से वक्त गुजर गया, थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो सॉरी सर, थोड़ी सी बात लंबी होगी। फिर मैंने एविएशन मेडिसिन का कोर्स कर लिया, मैं एयरफोर्स में आ गया चंद साल के लिए। यहाँ पे पायलट्स आते थे सुबह से लेकर शाम तक, उनकी मुश्किल रूटीन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, दोस्ती हमारी उनसे बहुत अच्छी हो जाती थी। तो अब मैं इस पे अब मैं उनकी क्या काउंसलिंग करूं, मैं उनके मसलों का तो मेरे पास हल नहीं था। इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ये सारा दिन फ्लाइंग का काम कर रहे होते हैं। तो उस वक्त भी मुझे बड़ी कमी महसूस हुई। तो कहीं चलते फिरते ब्रिगेडियर मोहद्दत राना से मुलाकात होगी। मैंने कहा सर ये मसला आ रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कहते हैं अपना कंधा पेश कर दो कि जिस पे वो रो लिया करें। तो उनकी भड़ास सुन लिया करो, आधे इसी से ठीक हो जाएंगे। तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ, उनकी पायलट्स की भड़ास सुनने का मुझे फ़ायदा हुआ कि वाक़ई इससे थोड़ा बहुत उनको अफ़ाक़ा हो जाता था, अगरचे एग्ज़ैक्टली। तो मैं समराइज़ करता हूँ अपनी चीज़ को सर, ये जो है कि लर्निंग नीड्स मेरी क्या हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे साइकियाट्रिक एलिमेंट के जो पेशेंट्स हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले, उनकी काउंसलिंग नहीं आती। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि मुझे प्रिवेंशन के कुछ पक्के स्टेप्स का इसका अंदाज़ा नहीं है कि क्या है। और तीसरा, मैं आजकल एमएससी पब्लिक हेल्थ कर रहा हूँ ऑनलाइन यूके से, तो मैं सोच भी रहा हूँ कि अपनी जो रिसर्च है वो भी कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट जो है मैं ऑप्ट करूँ। तो इस तरह की लर्निंग नीड्स हैं सर। थैंक यू सो मच सर, वेरी इंसाइटफुल कमेंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। आपने सुसाइड प्रिवेंशन के हवाले से कहा, वैसे प्रिवेंशन और प्रमोशन की पब्लिक हेल्थ डायमेंशन के ऊपर एम्फसाइज किया अपनी लर्निंग नीड्स के हवाले से। तो डेफिनेटली दिस इज़ वेयर वी आल्सो बिलीव के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाया जा सकता है। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट यू जॉइन दिस कोर्स एंड वी विल वर्क विद यू। डॉक्टर सादिया, डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई नाउ? अब आपका माइक काम कर रहा है, डॉक्टर सादिया। ओके, अगर डॉक्टर सादिया भी, फिर मे बी यू कैन टाइप अ क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर वी गिव माइक टू समवन एल्स, मैं ये भी एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ में जो एक और अहम एस्पेक्ट है ना, वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी होता है। तो डोंट फील प्रेशराइज्ड कि आपको ज़रूर स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी है किसी चीज़ की। अगर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट, फैमिली रिक्वायरमेंट या पर्सनल आइडेंटिटी के लिहाज से कुछ ऐसी चीज़ें, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन दैट यू गिव अस वेरी जेनरिक अकाउंट ऑफ थिंग्स। एंड से कि मैं ऐसी सेटिंग में काम कर रहा था जहाँ पे ये एक प्रिवेलेंट प्रॉब्लम था। और अगर आप पेशेंट की, इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन ना दें, तो आई थिंक दैट विल बी इवन बेटर, बिकॉज वी डोंट वांट एनीवन, मतलब कि उनको इस तरह से नेम किया जाए या उनको नाम को सर्कुलेट किया जाए इन द कम्युनिटी, ओनली इफ इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड ओनली इफ यू आर टॉकिंग टू अस इन अ क्लोज सेटिंग जहाँ पे हम एनोनिमिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। वी शुड टॉक अबाउट द स्पेसिफिक्स ऑफ द प्लेसेस, पर्सन्स, इन दैट केस ओनली एंड ओनली इफ इट इज़ नीडेड। अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि आप थोड़ा सा जेनेरिक रख के बातचीत को करें। डॉक्टर रबिया, गो अहेड प्लीज। डॉक्टर रबिया, डॉक्टर रबिया, अगर आपका माइक अनम्यूट हो सके, अदरवाइज नेक्स्ट इन लाइन डॉक्टर नेहा अमल, यू कैन ऑल्सो ट्राई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जी रबिया। सर, नहीं, दिस इज डॉक्टर डॉक्टर नेहा। नेहा है सर। जी जी जी। जी। सर, अभी टूल्स और ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो है ना, उस पे जो है ना डिस्कशन हो रही थी। तो मुझे ये ना कहना था कि इसमें एक ना मेंटल स्टेट असेसमेंट भी होती है, एक डॉक्टर्स को जो करनी होती है, मतलब उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर उसके ऊपर आप सेमिनार जो है ना वो इंक्लूड कर दें, उस जो 10 सेमिनार्स हैं, तो वो भी जी डॉक्टर हेल्पफुल नेहा, होगा। जो नेक्स्ट सेमिनार है वो है ही असेसमेंट के ऊपर। नेक्स्ट सेमिनार इज ऑन द जी असेसमेंट, सो विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर रबिया, यू कैन गो अहेड नाउ। डॉक्टर रबिया और उसके बाद डॉक्टर राबिया हैं। अगर डॉक्टर राबिया आपका माइक अनम्यूट होता है तो आप, राबिया बतूल।
और उनके बाद डॉक्टर अरूज हैं। आप में से जिसका भी माइक अनम्यूट होता है, यू कैन गो अहेड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर It's अरूज। Dr. Aruj sir. Yes. जी Sir, first of all, thank you for this interactive session. If it is requested, if kindly all the details which you have given and the timelines can be emailed to the candidates, because I don't receive any email from Shifa Tamir Millat so far. There is a WhatsApp group where they said that okay, like I think there are 2-3 classes has been conducted by Dr. Nasser. Rest, no intimation, nothing like that. No timelines has been shared so far. So I have done my mental health lectures by myself from Dr. Nasser Shah's course, which has been shared. But is there any check and balance that whether the students are going in which direction and you are giving what timelines? So that's one request. And secondly, डॉक्टर अरूज, आपके बाकी सारे ग्रुप वाले आपको बहुत आगे कोसेंगे जाके, क्योंकि अब आगे जो आने वाले हैं ना, हमने तो वो करना ही था, लेकिन हमने कहूँगा डॉक्टर अरूज के कहने पे हमने किया जो किया है अभी। सर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो लास्ट बैच आप लोगों का फर्स्ट गुजरा है, उसमें तमाम डॉक्टर्स का जो कॉमन फीडबैक था वो ये था कि आपने बच्चों की तरह पकड़ के हमें पढ़ाया है। तो आप सर वही टेंशन ना चाह लें रहे इस हैं, बात की। वही करेंगे तो वही चाह रहे हैं, वही करेंगे तो होगा। वही चाह रहे हैं हम लोग कि अगर आप वही करें तो हो जाए सही से। एंड सेकेंडली माय क्वेश्चन लेकिन वो डॉक्टर रिगार्डिंग उसामा दिस ने कोर्स। ऑलरेडी प्लीज नो कह दिया है। डॉक्टर उसामा वैसे ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही रखें, हल्का हाथ रखें। तो नहीं नहीं, तो मैं भी मैं आपको अभी, सोचती हूँ आप आज ही के, आपका जो आज का ही हमारे सेमिनार एंड होगा तो यू विल सी कि वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्लान इन प्लेस एंड दैट विल एड्रेस योर कंसर्न्स। And secondly, I try to reach out to Dr. Huda as well, and I think Dr. Saima because I have completed my 5 years, but I need a few attachment because I did my psychiatry, or when I was doing my in my MCPS training, so I did that by choice, psychiatry wards, but I require attachment for get along because काफी वक्त हो गया है और वो इस चीज को सारा फ्रेश करने में, क्योंकि वहां तो साइकेट्री वार्ड में काफी ज्यादा वैसे केसेस थे, बट इन द लेंस ऑफ जीपीशिप उसको किस तरह से करना है, दैट इज रिक्वायर्ड. So if there is no sufficient guidance regarding the attachment, I live in Islamabad, so I can reach out to Shifa or whatever the facility which is available nearby. I really struggled over, but I didn't get any response over that. I don't require training, I need just attachment. जी डॉक्टर रोज, थैंक यू सो मच। बस डॉक्टर हुदा के पास ये ठीक है सर। 240 लोग हैं जो रीच आउट कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, और इनके 4 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, और एक हस्बैंड भी, तो बाज़-औक़ात, और इनका अपना 5 हो एमएसपीएच गए, भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल 5 रही हो हैं इनकी, गए। लेकिन डॉक्टर अरूज, अपॉलजी अगर मेरा मिस आउट हो गया हो आपसे मैसेज, तो आई विल रीच टू यू, ठीक है? तो वो विल डू दैट, विल कवर इंशाल्लाह। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राबिया, रबिया, सादिया और नीलम, आप में से जिसका माइक अभी चलता है, जिसको पहले चांस मिलता है, गो अहेड प्लीज। हेलो जी, डॉक्टर राबिया बतूल सर। जबरदस्त, 2 लोग आ गए हैं। अभी बारी में वेट कर लें, एक पहले बोल पड़े, एक वेट कर लें। अच्छा, डॉक्टर राबिया बतूल हूँ, कोटली आजाद कश्मीर से ना। वैसे मेरी बेसिक पहली स्पेशलिटी तो गायनी की थी, मैंने डीजीओ किया हुआ था और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने हॉस्पिटल में ही। फिर मैंने एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन किया, तो अपने हॉस्पिटल में एज ए जीपी भी काम कर रही हूँ। तो एवरी थर्ड पेशेंट कोई मेंटल हेल्थ वाला लग रहा होता है, और एक पेशेंट मेरे पास 21 ईयर्स की यंग सी बच्ची है, मेड स्टूडेंट है, 3rd ईयर एमबीबीएस की। वो ये कहती है कि मुझे एडीएचडी है, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर सकती हूँ, और बिल्कुल एंड टाइम पर, मतलब कि मुझे होता है जब प्रेशर हो सिर्फ उसी टाइम पे मैं पढ़ती हूँ, वरना मैं हर वक्त डिस्ट्रैक्ट रहती हूँ। लेकिन अदरवाइज वैसे उसकी मदर से और उसकी बाकी सिबलिंग से जब हिस्ट्री ली, तो वो लोग कहते हैं कि जैसे गेम कोई खेलते हुए, पबजी खेलते हुए, या कोई अपनी इंटरेस्ट की कोई रैंडम बुक पढ़ते हुए बिल्कुल फोकस होती है। ये सिलेबस के बुक्स के साथ इसको होता है कि मुझे फोकस नहीं हो रहा, और वो मुझे मतलब इतना प्रेशर वो करती है कि मुझे रिटालिन दे। तो अभी तक तो मतलब कि मैंने उसको थोड़ा सा काउंसलिंग पे रखा हुआ है,
तो इस बारे में बताएं कि कैसे डायग्नोज किया जाए और क्या मतलब इसको कैसे मैनेजमेंट में डाला जाए। जी डॉक्टर आबिया, एक्चुअली अभी तो क्योंकि फुल ग्रुप के अंदर हम हैं तो इट वुड बी डिफिकल्ट सारों के साथ इसको इंडिविजुअली आपको एडवाइस करना, बट यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी कैन शेयर सम मटेरियल्स विद यू दैट यू कैन यूज, एंड इन ड्यू कोर्स जब आप लोग इससे गुजरेंगे तो यू कैन आल्सो डिस्कस दीज इन केस डिस्कशंस, सो दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू डू दिस. But you can reach out to Dr. Huda, you can discuss these things and we'll be more than happy to discuss with you more individually. Next, Dr. नीलम या अतिया, whatever, जिनका भी. अतिया. अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मैं डॉक्टर नीलम हूँ, मैं और हबीबाबाद पत्तों में काम करती हूँ. मतलब ये बहुत प्यारी इलाका है, मतलब ज़्यादा पुअर पेशेंट्स होते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मतलब सारी सिम्टम्स, सर के लेक्चर्स, हमने ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी देख ली हैं. लेकिन सर समटाइम पेशेंट आते हैं मिक्स सिम्टम्स होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम उसको स्टार्ट कहाँ से लें. वो एंग्जायटी की भी सिम्टम्स जो उनकी होती हैं वो बता रहे होते हैं, डिप्रेशन में भी मतलब इस तरह की अपनी अलामात शेयर करती हैं. तो मतलब कुछ केस सिनेरियोज होने चाहिए जो हम अगले सेमिनार्स में आप हमसे डिस्कस करें कि हाउ टू प्रोसीड, या मतलब हम कौन सी चीज़ को पहले देख के आगे स्टार्ट करेंगे. जी बिल्कुल जी, ठीक कह जैसे रहे हैं कि सर आप. क्लिनिकल मेरा केसेस में अपना जो भाई है सर जी, जी. हाँ, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर नीलम के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ऐसे ही होता है एक्चुअल प्रैक्टिस में. मतलब ये जो आईसीडी और डीएसएम की क्लासिफिकेशंस हैं, ये आपको आईसीडी, सॉरी अतिया, डॉक्टर अतिया, कि उसमें ज़्यादा मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको मिक्स्ड सिनेरियोज भी मिलते हैं. और अभी जो है हमारे कुछ ये 10 सेमिनार्स जो हैं ये हम 2 मंथ्स में कवर करेंगे, 2.5 मंथ्स में. एंड देन जो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स है ना, वो टोटल केस डिस्कशंस ही होंगे, और वो आप ही लोग केसेस लेके आएंगे और वो हमारी फैकल्टी के साथ आप डिस्कस करेंगे विद अ ग्रुप. तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिच लर्निंग एक्सपीरियंस कि हमने इन गाइडलाइंस को किस तरह से ऑपरेशनलाइज करना है इंडिविजुअल पेशेंट्स में. आई होप दैट विल एड्रेस योर कंसर्न. सर मेरा एक और कंसर्न ये है कि मेरा अपना ही भाई है, उसको मतलब कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, हम सीएमएच भी गए, लाहौर भी गए. कुछ कहते हैं नहीं ये थोड़ा सा डिप्रेशन में है, कुछ कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ मैसेस्मेटिक डिसऑर्डर्स हैं. डिफरेंट डॉक्टर्स ने उसको डिफरेंट मतलब एंटी डिप्रेसिव और टैबलेट्स वगैरह स्टार्ट किए, उससे उसकी सिम्टम्स और वर्स हो जाती हैं और वो अब मेडिसिन तो लेता ही नहीं है. एंड आई वाज सो मच वरीड कि अब मैं उसको किसे कंसल्ट करूं. फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर नासिर शाह को लाहौर में किसी दिन विजिट करती हूँ अपने भाई को लेके. तो सर मतलब जब अपनी फैमिली में ही इस तरह के इश्यूज होते हैं और हम इतने कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सोचती हूँ बाकी पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं करते या जिनकी एसेस नहीं होती, वो कैसे इन चीजों को देखेंगे. और मुझे प्लीज कोई बिल्कुल रिकमेंड भी यही वो कर दें इफ फेल्ट इट्स नीड है. पॉसिबल. बिल्कुल यही फेल्ट नीड है जिसकी वजह से हमने इस इनिशिएटिव को लिया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल रियली. और जो आपने शुरू में लेक्चर की चीज़ें देखी होंगी कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जनरल फिजिशियंस और फैमिली फिजिशियंस को ट्रेन करें कि दे कैन बिकम द पॉइंट ऑफ केयर. और बिल्कुल ऐसे ही है. और रिगार्डिंग योर ओन पर्सनल, तो आप प्लीज यू कैन रीच आउट टू डॉक्टर हुदा एंड वी विल सी के हाउ हु वी कैन रिकमेंड टू यू एंड हाउ वी कैन सपोर्ट यू इन दैट. ओके तो सर, उसको थैंक हम यू सो इंडिविजुअली मच. कर लेंगे. हु इज नेक्स्ट? ओके सर. थैंक यू, थैंक यू. डॉक्टर सादिया, डॉक्टर अतिया. डॉक्टर अतिया हियर. जी. जी जी जी. अच्छा, डॉक्टर मैं थोड़ा सा मिस करके बीच का ड्यू टू सम कनेक्शन प्रॉब्लम. व्हाट आई वांटेड टू नो कि हाउ थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ कर दीजिए कि PHQ-2 की जो इम्पोर्टेंस है, हाउ कैन इट बी इनकॉर्पोरेटेड एंड हाउ फार वी कैन गो. PHQ-2 के हवाले से मैं बात कर रही हूँ. अगर हम इसको अपनी प्राइमरी डॉक्टर हेल्थ अतिया, केयर इफ में यू डोंट इनकॉर्पोरेट. माइंड, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अभी हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं. यू विल हैव टू वेट फॉर लाइक 8 weeks और सो, एंड देन वी विल कम टू इट. आई वुड ब्रीफली आई वुड से कि PHQ-2 से ज़्यादा PHQ-9 बेहतर होगा अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं. जब आप बिल्कुल कोई एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे कर रहे होते हैं वहाँ पे ब्रीफ क्वेश्चनियर्स बेहतर होते हैं. लेकिन इवन जब आप क्लिनिकल में देखना चाहते हैं मरीज को, तो मैं आई यही वुड से पूछना कि चाहती थी. जी. जी PHQ-9 would be better, but we can also have this discussion जब हम उस टाइम पे आते हैं. प्लीज मतलब do ask these questions at अच्छा, that time. थैंक यू सो मच. थैंक यू. डॉक्टर सादिया खालिक. अच्छा चलिए डॉक्टर सादिया, देखते हैं अगर आपका माइक अनम्यूट हो जाता है, अदरवाइज फिर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. डॉक्टर साहब एक और भी, डॉक्टर मारिया, आप कुछ कहना चाहते हैं क्विकली? डॉक्टर मारिया.
जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर बस वालेकुम। एक चीज़ और ऐड करनी थी सर कि सर आपने इसमें अभी जो टाइमलाइन में उसमें बताया कि कोई वर्कशॉप वगैरह भी होगी, सर ये फिजिकल वर्कशॉप होगी या ये भी ऑनलाइन होगी? और सर रिक्वेस्ट ये थी कि अगर एक भी फिजिकल वर्कशॉप हो सके सर, जो फिजिकल क्लास का इम्पैक्ट होता है ना वो सर वो पूरे साल की ऑनलाइन क्लासेस के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक बात है, विल ट्राई टू डू दैट। इस्लामाबाद में कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हम कर सकते हैं ये चीज़। बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है ऑब्वियसली ट्रैवल करना, और फिर थोड़ा इनइक्विटेबल भी हो जाता है कि कराची या लाहौर वालों का क्या कसूर है कि सारी चीज़ें इस्लामाबाद वालों को ही मिल जाएं, बट वी कैन ट्राई दैट। अभी आप अपने बाकी ग्रुप वालों से कुछ अच्छी दोस्ती पैदा करें ताकि वो बाद में इस तरह के हमें शिकवे ना दे जब ये बात हो तो। ठीक है जी। देखा, वो फौरन डॉक्टर सिंधु जो है उन्होंने कहा है कि सिंध वालों को निगलेक्ट किया जाता है। अच्छा, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो 10 ट्रेनिंग सेमिनार्स जो हैं वो हमने अब नेक्स्ट करने हैं, और इनमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है हम आज कर रहे हैं ओरिएंटेशन का। दूसरा सेमिनार इज़ अबाउट साइकाइट्रिक असेसमेंट। अब आपके जो सेमिनार है ना, अब हर सैटरडे को इस टाइम के ऊपर रेगुलरली होंगे फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स। और फर्स्ट इज द असेसमेंट, देन एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, डिमेंशिया, सब्सटेंस यूज, सेल्फ हार्म और सुसाइड। तो ये वो प्रायोरिटी कंडीशंस हैं जिनको हम कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह ओवर द नेक्स्ट 10 वीक्स इन कोलैबोरेशन विद आवर फैकल्टी। आपसे रिक्वेस्ट सिंपल ये है कि प्लीज़ टाइमली रिस्पॉन्ड करें, चीज़ों को अटेंड करें, सेमिनार्स को, बिकॉज दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। So Professor Fareed Minhas, Professor Ali Hashmi and myself, so we are going to be the core faculty, और हम में से लोग जो हैं वो सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे होंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर फॉलो अप डिस्कशंस आपके साथ क्लिनिकल सुपरविजन्स की कर रहे होंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ये है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग सेमिनार्स। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम आपकी नॉलेज और स्किल्स बिल्ड करना चाहेंगे ताकि आप इन तमाम कंडीशंस को अपनी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। और फ्रीक्वेंसी सैटरडे 2 to 5 PM। आई होप कि सैटरडे 2 to 5 इज़ फाइन विद एवरीवन। ये सारे सेशंस जिस तरह अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं फैकल्टी के साथ, आप इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी बेटर। आप लोग इसको रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं बाद में, या आपके गूगल क्लासरूम में मैसर होंगी सारी की सारी, लेकिन वी इनकरेज यू कि आप ऑनलाइन इसको लाइव अटेंड करें। इस टाइम को कुछ स्पेयर कर लें, 3 घंटों को हफ्ते में 1 दिन के लिए। और अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते तो यू हैव टू टेल डॉक्टर हुदा बिफोर इट, ताकि आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है। डॉक्टर रीबा, 2 घंटे आप देख लीजिएगा कि कितना टाइम लगता है व्हेन वी आर वर्किंग विद अ बिगर ग्रुप एंड व्हेन वी वांट टू कीप इट इंटरेक्टिव, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वी कैन मेक इट 2 hours बट दैट विल टेक अवे टाइम फॉर डिस्कशन। तो ये जो है, और आप लोग देख सकते हैं कि हाउ मच यू कैन अटेंड लाइव। कुछ पार्ट अगर अटेंड कर सकते हैं 2 घंटों के लिए तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट, तो हमारा गोल क्या है कि आपके पास कुछ डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन के अंदर ऑनलाइन मॉड्यूल्स मौजूद हैं, वो आप देखें और सुने। उसके बाद जो है ट्रेनिंग सेमिनार्स नेक्स्ट 10 होंगे जिसको आप अटेंड करेंगे, जिसके ज़रिए से हमारी फैकल्टी एक्सपर्ट आपको हेल्प करेगी इसमें। और फिर उसके बाद आपका क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिसके अंदर आप तमाम अपनी नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई करेंगे अपने पेशेंट्स पे। आप एक्चुअली देखेंगे कि हम किस तरह उनकी नीड्स असेस कर सकते हैं, किस तरह ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं टू द कम्युनिटी एट देयर डोर स्टेप, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो जिस तरह मैंने कहा, हमने शुरू में एक 7 मिनट्स की वीडियो देखेगी। व्हाट आई वुड आइडियली वांट इज कि आप में से हर एक मुझे एक 7 मिनट्स की वीडियो दे जब आपने प्रोग्राम किया, कि हाउ हैज़ इट चेंज द लाइव्स ऑफ योर पेशेंट्स एंड योर काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव एंड मैनेजमेंट। जो हम इसमें क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम होगा वो इस तरह से होगा कि वंस यू हैव कंप्लीटेड द ऑनलाइन 10 सेमिनार्स, आपकी ये क्वालिटेटिव नीड्स असेसमेंट आप करेंगे। पहले हम आपको इसमें ट्रेन करेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स में ब्रीफली, एंड देन यू विल डू योर नीड्स असेसमेंट विद योर पेशेंट्स एंड योर क्लिनिकल सेटिंग्स, so that we know कि what sort of a clinical population you are dealing with and what are their needs and how best you can support them. Then जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने कहा कि कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स आपको प्रोवाइड किए जा सकें और कुछ ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि जो है आप लोग देख सकें कि क्वांटिटी क्या है इस प्रॉब्लम की,
और फिर तीसरी बात जो आपको हम क्लिनिकल स्किल सिखाएं तो आप एक्चुअली ये मेंटल हेल्थ गैप इंटरवेंशन गाइड बेस्ड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें और फिर आप उसका इम्पैक्ट एवेलुएट कर सकें. सो दिस इज व्हाट योर क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम वुड लुक लाइक. What we expect is कि between January to June 2025 आप at least 90 patients over a period of 6 months screen करेंगे. उनमें से 45 patients ऐसे होंगे जिनको आप clinical care provide करेंगे और उनमें से 30 patients ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिनका आपके पास pre और post का डाटा हो कि जब वो आपके पास आए तो what was the severity of the problems that they were facing and how did your care provide them relief and how did they improve. और वी एक्सपेक्ट कि जब आप 30 पेशेंट्स को इस तरह की केयर दे रहे होंगे ओवर 6 मंथ्स पीरियड तो 10% ऑफ देम will need some specialist support. So we also want to help you build these referral pathways. चाहे हम वो टेली साइकाइट्री के जरिए अपनी स्पेशलिस्ट फैकल्टी से आपके राब्ते इस्टेब्लिश कर दें जिसके ज़रिए से फिर आप एक्सपर्ट हेल्प और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकेंगे. एंड व्हाट वी इमेजिन इज़ कि जब इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो 10 सेमिनार्स, फिर 6 मंथ्स का क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम, screening of patients, providing them with a care and improvement in clinical outcomes. तो फिर आपको हम यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन जो मिलेगी डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च फॉर यूएचसी. दिस इज इट विल इंशाल्लाह टेक यू टू दिस पॉइंट. डॉक्टर सादिया, ये मिक्स पॉपुलेशन हो सकती है. इट कैन बी एनी पॉपुलेशन दैट यू डील विद. इट कैन बी चिल्ड्रन, इट कैन बी एडल्ट्स. तो जब आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिकम कर रहे होंगे तो हम आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर आप केस लॉग मेंटेन करेंगे और उस केस लॉग के अलावा एक रिफ्लेक्टिव लॉग भी मेंटेन करेंगे जिसमें आपने रिफ्लेक्शंस लिखेंगे और आपको ओवर द 6 मंथ्स जो केस बेस्ड डिस्कशंस होंगी जो आप ही लोग प्रेजेंट करेंगे और फैकल्टी से अपने केसेस डिस्कस करेंगे. तो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग. रिफ्लेक्टिव लॉग में आप अपने पर्सनल रिफ्लेक्शंस, जैसे आप लोग अभी अपने पर्सनल रिफ्लेक्शंस शेयर कर रहे थे, तो उसी में आप पर्सनल रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन और थॉट्स लिखेंगे और उसके लिहाज से फिर आपकी फैकल्टी के साथ डिस्कशन होगी. और फिर जो क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम होगा उसमें जो केस बेस्ड डिस्कशन है उसमें केस प्रेजेंट होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस होगा, डायग्नोस्टिक वर्कअप डिस्कस होगा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस होंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दैट केस होगा, उसमें से कहाँ आपको स्पेशलिस्ट को रेफर करना है, किन किन और चीज़ों में कोलैबोरेशन और सपोर्ट चाहिए होगी, और लर्निंग पॉइंट्स और रिफ्लेक्शन. सो दिस इज हाउ अ केस बेस्ड डिस्कशन विल बी स्ट्रक्चर्ड. व्हाट वी इमेजिन इज कि आप तकरीबन आज 100 लोग हैं जो ऑनलाइन है, 104 एज आई सी नाउ, और तकरीबन 200 एंड डॉक्टर हुदा कितने हैं, 19 टोटल डॉक्टर्स हैं जो रजिस्टर हुए इस प्रोग्राम के. तो अगर ऑन एन एवरेज ओवर 6 मंथ्स आप में से हर एक 100 पेशेंट्स को स्क्रीन करे तो इट बिकम्स 20,000 पीपल हु विल बी स्क्रीन्ड. एंड देन जिस तरह हमने देखा कि उनमें से 50% अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ हों तो यू विल बी प्रोवाइडिंग केयर टू एटलीस्ट 10,000 पेशेंट्स. और उसमें से जो मैंने कहा कि 50 मतलब आप लोग प्री पोस्ट एवेल्युएट कर रहे होंगे तो 6,000 पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, और जिनमें से 675 ऐसे होंगे जो हमें लगता है कि कुछ स्वेरिटी के साथ होंगे जहां स्पेशलिस्ट की आपको हेल्प चाहिए होगी. सो दिस इज द इम्पैक्ट दैट वी फोरसी इंशाल्लाह वर्किंग विद यू ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर. हम आपके साथ मिलके दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव. और वी वुड आल्सो वांट टू राइट इट अप. दिस इज वेयर माय एक्सपर्टीज एंड माय टीम एक्सपर्टीज लाइज. तो हम ज़रूर आपके साथ मिलके इनको पब्लिश भी करना चाहेंगे बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क दैट द दुनिया नीड्स. इससे पूरी दुनिया को लिमिट्स में आपने देखा WHO की डॉक्यूमेंट्री से, एंड दिस इज़ व्हाट द इम्पैक्ट विद द पॉलिसी मेकर्स वी वांट टू क्रिएट. अभी हम एक और चीज़ जो करेंगे, जो आपका फर्स्ट बैच है जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, उनकी हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी है विद इन अ मंथ और सो. ये सार कॉन्फ्रेंस और शंघाई कॉन्फ्रेंस और धरनों की वजह से वो डिले हो गया है और वो काफ़ी वेट कर रहे हैं लोग, वी अंडरस्टैंड दैट. तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ्स टाइम वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रेजुएशन सेरेमनी फॉर द फर्स्ट बैच, बट एट द सेम टाइम वी वुड ऑल्सो एक्सटेंड इन्विटेशन टू यू कि अगर आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहें और वो इवेंट अटेंड करना चाहें इस्लामाबाद में तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस. हम आपसे सर्कुलेट करेंगे वो डिटेल्स भी इंशाल्लाह. तो अभी जो आप लोग रजिस्टर्ड हैं 219, तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज. पंजाब से 122 हैं, इस्लामाबाद से 37, सिंध से 34, KPK से 19, AJK से 6 और एक फॉरनर है ओमान से. ये ओमान वाले जो हैं ये अभी हैं हमारे पास ऑनलाइन? अगर हैं तो ज़रा हाथ खड़ा करें. नहीं है मुझे लगता है.
अगर हैं और ख्याल आ जाए तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई थिंक वी आर ऑल क्वाइट डिस्टेंट टू इंशाल्लाह क्रिएट अ इम्पैक्ट अक्रॉस द कंट्री। और डॉक्टर सांधू आपने कहा था सिंध निगलेक्ट होता है, तो आई कैन अश्योर यू कि सिंध इज़ ऑन माय हाई प्रायोरिटी, और स्पेशली नॉट जस्ट सिंध बल्कि वो तमाम डॉक्टर्स भी जो कि पंजाब में जो लेस डेवलप्ड रीजन्स हैं और एरियाज़ हैं, KPK में, AJK में, प्लीज़ आइडेंटिफाई योरसेल्व्स। आप डॉक्टर हुदा को आइडेंटिफाई करके देखें, बताएं। वी विल मेक श्योर कि आपकी जो भी नीड्स हैं हम उनको केटर फॉर करें। आपको जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए हम एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट पुट इन करें, सो दैट आपकी जो फिज़िकल दूरी है वो आपकी लर्निंग में और आपकी पेशेंट केयर में मुतासर ना हो उससे। तो इंशाल्लाह आइडेंटिफाई योरसेल्व्स टू अस। जो लोग आप में से रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, हार्ड एरियाज में काम कर रहे हैं, वी विल वर्क विद यू एंड विल मेक श्योर कि यू गेट द बेस्ट सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट इंशाल्लाह। दिस इज माय कमिटमेंट विद यू। नॉट और इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग मेन सिटीज़ में हैं वो सौतेले हैं, वो भी उतने ही सकें, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि जो लोग हार्ड एरियाज के अंदर हैं, डेफिनेटली यू आर ऑन आवर हाई प्रायोरिटी। वी डेफिनेटली वैल्यू कि आप लोग एफर्ट कर रहे हैं ये सारा काम करने के लिए। तो ये उसी की एक आपके सामने सिटीज़ के लिहाज से अब डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, एबटाबाद, हैदराबाद, जैसे रहीम यार खान, और उसके बाद वी हैव समवन फ्रॉम झंग, मीरपुर, पेशावर, 3 GPs। और फिर 2 GPs हमारे पास हैं, हर एक में से अटक, बन्नू, जेहलम, लिया, मर्दान, मियांवाली, मीरपुर खास, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, वाकिन, और 1 GP ईच फ्रॉम डॉक्टर सिंधु। हैदराबाद में मेरा ननियाल है, मेरी अम्मी हैदराबाद से शादी होके आई थी, तो आपके साथ तो और प्यार होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये फिर हमारे पास बहावल नगर, बहावलपुर, बाजोड़। बाजोड़ से कौन है डॉक्टर साहब? बाजोड़ से, भक्कड़ से, बुनेर से, बुरेवाला से, चकवाल, चारसद्दा, लोरदीर, फतेहजंग। तो ये देखें हमने वी हैव ट्राइड टू मैप इट डाउन, इसीलिए टंडो आदम से, विहाड़ी से। सो वी डेफिनेटली वांट कि ये लोग जो फार फ्लंग एरिया से हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करें। डॉक्टर साहब कौन है जो यमन से कनेक्ट कर रहे हैं? मैं सिर्फ मोहम्मद A डॉट देख सकता हूँ। डॉक्टर साहब कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? वी वुड बी कीन टू हियर फ्रॉम यू। अमान अली नहीं, जिशान, डॉक्टर जिशान, कैन यू हियर मी? चलें, विल मेक अ पॉइंट कि इंशाल्लाह आप लोगों से इंडिविजुअली भी इंटरेक्ट करें और देखें, बट यू कैन सी दिस स्प्रेड एंड आई सी दिस के ये वो तमाम एरियाज़ हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ की केयर लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह यू विल सी कि वी विल नॉट बैक ऑफ, बट वी नीड यू टू काइंड ऑफ वर्क विद अस टू मेक श्योर कि हम आपके नीड्स को, कॉन्टेक्स्ट को समझें और आपके साथ मिल के काम करें और देखें कि हाउ वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड केयर टू पेशेंट्स इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में। तो एक हम फिर रिसर्च जो प्रैक्टिकम है इसका फ्लो चार्ट आपको बताया कि जो क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम है, दिस इज अ फ्लो चार्ट। अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर सक रहे अपने आप को मे बी। फिर स्किल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप है रिसर्च की, तो हम ये भी डेडिकेटेड आप लोगों के लिए रन करेंगे। और उसके बाद ये प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि 11 जनवरी सैटरडे, सो दिस इज़ व्हेन वील डू द स्किल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप। ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड होगी, मे बी इट कुड बी हाफ डे वर्कशॉप। तो आई वुड लाइक यू कि आप अभी से अपने कैलेंडर्स को मार्क करें और हाफ अ डे ज़रूर, मतलब ये भी हम 3 घंटे की करें तो समझें कि इट वुड बी 2 सेशंस विद अ ब्रेक इन बिटवीन। एंड वी कैन सी कि अगर आप लोगों को सूट करता हुआ तो वी कैन कीप इट इन इस्लामाबाद, और आप में से जो लोग आना चाहें तो वी कैन सी हाउ वी कैन फैसिलिटेट दैट। So this is something that we can do inshallah in person in Islamabad.
क्लिनिकल रोटेशंस, अगेन आप में से जिन लोगों का 5 इयर्स से कम क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आइडेंटिफाई योरसेल्व्स, कहाँ पे आप बेस्ड हैं, और हम आपको कोशिश करेंगे कि इन टच करें अपने नेटवर्क के साथ जहाँ पे आप लोगों की हम क्लिनिकल अटैचमेंट्स और ट्रेनिंग कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर इशरत, आप भी हैदराबाद से हैं, आपको भी खुसूसी प्रोटोकॉल मिलेगा। और आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी जो केस लॉग्स में हैं जिनके 5 ईयर से कम एक्सपीरियंस है, कि 4 वीक्स, और आप लोगों को केस लॉग मेंटेन करना होगा इन तमाम पेशेंट्स का जो आप देखेंगे। और ये एक फॉर्मेट होगा जो हम आपको देंगे, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट सेमिनार में इंशाल्लाह बात करेंगे इसके अंदर। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ जो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हम अक्रॉस पाकिस्तान इस नेटवर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ इन प्राइमरी केयर, बल्कि वी हैव रिसेंटली साइंड दिस MOU विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और जिसमें ये ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क है। इफ़ यू जस्ट गूगल इट, तो दिस इज़ अ बिग नेटवर्क, इसके 1 मिलियन मेंबर्स हैं। और इसके जो फाउंडर है प्रोफेसर टूडी लैंग, वो मेरी बहुत अच्छी कोलीग है, और हमने ये MOU साइन किया, और विजन यही है कि अब हम इसके ऊपर मेंटल हेल्थ का एक ग्लोबल हब करेंगे जो हम लोग होस्ट करेंगे। और मैं चाहता ये हूँ कि जो हमारा नेटवर्क है आप लोगों के साथ, दिस शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड टू लर्न फ्रॉम। और मेरी अगले हफ्ते इंशाल्लाह इनसे मीटिंग है, एंड वी विल सी कि ये जो हम एफर्ट करें आप लोगों के साथ मिलके, इट इज शोकेस टू द बेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं अहम काम की तरफ। अच्छी अच्छी बातें बहुत हो गई, अब सही पढ़ाई वाली बात शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वी हैव गॉट 219 एप्लीकेशंस, और हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 219 फ़िलहाल नहीं है। तो व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम यू ऑल, और मुझे तो लग रहा है कि आज जितने 100 लोगों ने ज्वाइन किया, दे आर ऑल वेरी मोटिवेटेड एंड एक्सीलेंट कैंडिडेट्स, बट डॉक्टर हुदा विल सर्कुलेट दिस गूगल फॉर्म का लिंक, जिसमें आई वुड रिक्वायर यू कि आप लोग अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखें और एक्सप्लेन करें आपकी मोटिवेशन फॉर दिस प्रोग्राम। और प्लीज़ इट विल टेक लेस देन 5 मिनट्स, आई एम श्योर, विच इज़ ऑल अबाउट वाई डू यू वांट टू डू दिस। और हमने आज काफ़ी इस पर बातचीत की, एंड दैट इज़ वाई वी हैड केप्ट इट लेटर ऑन इन द डिस्कशन, ताकि आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आए। ये जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं ना, मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं अमानत समझता हूं, और आई डोंट वांट कि आप में से कोई भी शख्स, एंड आई बिलीव कि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो इस अमानत में ख़यानत करे और किसी ऐसे कैंडिडेट का हक मारा जाए जो कि डिज़र्विंग हो, लेकिन हम जस्ट उसको मिस आउट कर दें। तो आई वुड वांट कि आप लोग इस गूगल फॉर्म को फिल करें, और उसमें अपना वी नीड सम वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, एंड जस्ट a very brief, like 2 paragraph या 3 of what is your motivation for this course and how would you benefit from this scholarship. So please complete that and submit it. ये link आपसे share हो जाएगा अभी इसी सेमिनार के बाद. So please complete it and submit it. If you have any questions about it, please do ask. आज available हैं, हम ये कर सकते हैं. Please submit these personal statements by 21st October Monday. और जब आप देंगे तो हम by Thursday 24th October आपको communicate कर देंगे. डॉक्टर साहिबा ने एक पूछा था कि अभी तक आपको हमसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जब हम ये स्कॉलरशिप का डिसीजन ले लेंगे, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मैं समझता हूं कि 200 क्या 2000 भी डॉक्टर्स हों जो मेंटल हेल्थ में ट्रेन होना चाहते हो, तो मैं अपनी पर्सनल पॉकेट से उनकी फ़ीस देने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड वो लोग उस पैसे के साथ इंसाफ करें और वो उस स्कॉलरशिप को दाता दरबार का लंगर ना समझें कि हर बंदा ही लाइन में लग के ले जा रहा है, बल्कि ये कि वो उसको यूज़ करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं दुनिया भर से रिसर्च ग्रांट्स ले सकता हूँ, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, पैसे इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट पीपल मिस कमिट। और ये अनफॉर्चुनेटली एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ मेरा विद द फर्स्ट बैच, जहाँ बहुत सारे लोगों ने स्कॉलरशिप तो ले ली और हमने 100% लोगों को स्कॉलरशिप दिया, लेकिन उसके बाद लोगों ने दे डिड नॉट कीप देयर साइड ऑफ द प्रॉमिस। और हालांकि हमने सारों से और आप लोगों से भी एफिडेविट लिए कि अगर आप ये पूरा नहीं करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, देन मसला ये है कि हमने ये करना नहीं चाहते थे कि आप में से किसी का कोई सर्टिफिकेट और प्रोग्राम ख़राब हो। तो वी आर नॉट होल्डिंग एनीवन बैक, लेकिन यकीन रखें इस बात का कि दुनिया के हिसाब बहुत सस्ते होते हैं और आदमी सस्ते में छूट जाता है, आखिरत में मिस कमिटमेंट का हिसाब बहुत सख्त होगा। तो इस बात को बस ज़हन में रखिएगा।
तो आप लोग अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स देंगे। अभी भी देखें कि अगर 219 लोगों ने सबमिट किए हैं तो 100 लोग हैं जिन्होंने कोर्स अटेंड किया है। तो आई फील बैड अबाउट इट, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि जिन लोगों ने अटेंड किया और आप लोगों से मुझसे मोटिवेशन से बहुत मुझे अच्छा लगा। एंड आई फील कि दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी मोटिवेशन, और फिर जाके बाहर से चीज़ें लेके बंदा लाते हुए और आप लोगों पे इन्वेस्ट करते हुए अपने लोगों पे अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर लगे कि आपके अपने ही लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट समथिंग गुड। तो दिस इज़ व्हाट इज़ माय हम्बल सबमिशन टू यू कि प्लीज़ आप ये करें। तो आप लोग अगर इसको एज सुन एज पॉसिबल अपनी पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, हम उनको रिव्यू करेंगे, एंड देन इफ़ नीड बी तो आपसे एक ब्रीफ कॉल कर लेंगे। इफ़ नॉट तो वी विल गो अहेड एंड रजिस्टर यू विद द यूनिवर्सिटी, एंड देन वी विल एडमिट यू टू द गूगल क्लासरूम। तो और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि थर्सडे से आप लोग गूगल क्लासरूम में आ जाएंगे, जहां आपको सारे रिसोर्सेज, मटेरियल्स, लेक्चर्स, एंड वी विल कनेक्ट अगेन ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। अगर आप में से वो लोग जिन्होंने सबमिट नहीं करते बाय मंडे, तो फिर जाहिर है, और अगर आप अपनी पर्सनल मोटिवेशन में भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वाई डू यू नीड दिस स्कॉलरशिप, तो जाहिर है यू विल हैव टू पे योर रजिस्ट्रेशन फी टू द यूनिवर्सिटी, एंड यू विल नॉट बी कवर्ड बाय द स्कॉलरशिप। आई होप कि यू ऑल एग्री कि दिस इज ओनली फेयर कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ, एंड यू डोंट फील इट एज अनफेयर। मतलब इट इज़, बट मतलब स्कॉलरशिप का मतलब ही होता है कि हम लोगों को एंटरटेन करें, चाहे आपकी मेरिट बेस्ड हो चाहे नीड बेस्ड हो। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि एबिलिटी टू पे इज़ नॉट अ बैरियर। आप में से अगर कोई भी शख्स सिंपल ये भी लिख के भेज देगा कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे दिस फी, वी विल नॉट आस्क यू अनदर क्वेश्चन, वी विल नॉट आस्क यू फॉर अ प्रूफ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में आदमी बहुत सस्ते छूट जाता है, आखिरत में अल्लाह ताला इसका बहुत कड़ा हिसाब लेगा। तो आई लीव इट टू यू एंड अल्लाह ताला। एनी ऑफ यू से कि यू कांट पे द फी, तो इट डजेंट मैटर, आप पर्सनल स्टेटमेंट में लिख दें और वी विल ऑनर दैट वट एवर यू विल से। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब आप लोग ये कर देंगे थर्सडे तक आपको इंशाल्लाह कम्युनिकेट करके वी विल ऐड यू ऑल टू द गूगल क्लासरूम बाय थर्सडे, एंड सैटरडे पे इंशाल्लाह हमारा सेमिनार होगा। आई रिक्वेस्ट कि जो 10 सेमिनार्स हैं इनको लाइव अटेंड करें। हमारी फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो बहुत मोटिवेटेड है, यू विल बेनिफिट इमेंसली। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर गुड एज वेल, बट अनलेस यू हैव अ वेरी वैलिड रीज़न, आप ड्यूटी पे हैं, कोई अनअवॉइडेबल फैमिली कमिटमेंट है, तो फिर आप डॉक्टर हुदा को एक्सप्लेन कर दें, बता दें कि यू कांट अटेंड इट, बट अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप इसको करें। दूसरा ये कि हम हर सेमिनार से प्री और पोस्ट आपका नॉलेज की असेसमेंट करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि हाउ वी हैव हेल्प्ड यू improve on your knowledge about mental health problems. And similarly, there will be a feedback performed after every lecture. I request that you provide us with very honest and candid feedback so that we can improve on our program. एक मिड टर्म एग्जाम होगा which is mandatory again. You have to take that exam. किसी को हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट अगेन टू कीप अप विद द मोमेंटम। और फाइनली आपका फाइनल एग्जाम होगा जिसके नतीजे में आपको फिर हम कोर्स को अवार्ड करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, इधर टाइप इन द Q&A। आई ऑल्सो सी के 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर उरूज और डॉक्टर आयशा, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, तो मैं बस कंप्लीट करने लगा हूँ एंड देन आई विल कम टू यू विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओह, एक्चुअली वी आर देयर। सो डॉक्टर उरूज, यू गो फर्स्ट। डॉक्टर उरूज अगर नहीं बोल पा रही तो डॉक्टर आयशा, यू कैन गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरी क्वेरी ये थी कि ये जिस तरह स्कॉलरशिप पे है, और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि समवन हु कैन नॉट पे, के उनके लिए मोर डिजर्विंग लोगों के लिए है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर तो वी कैन पे नाउ, मतलब बिकॉज वी अप्लाइड 6 months बैक ना, तो सर्कमस्टांसेस चेंज, तो पूछना ये था कि इफ वी कैन पे नाउ, तो अगर हम पे कर देते स्टिल वी कैन कंटिन्यू विद द डिप्लोमा, के वो हम उसी तरह हमें मिल जाएगा, या वो दिस इज ओनली फॉर स्कॉलरशिप पीपल? नहीं नहीं, स्कॉलरशिप का मकसद, थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर योर वेरी काइंड ऑफ नोबल इंटेंशंस। इसका बेसिकली तो स्कॉलरशिप का एक मकसद ये था कि ज़ाहिर है वी अंडरस्टैंड कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो जनरल फिजिशियंस हैं। उनमें ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे होंगे, एंड दे माइट नॉट हैव द स्पेयर रिसोर्सेज, क्योंकि फैमिलीज होंगी टू सपोर्ट और सर्कमस्टांसेस होंगे। तो वी वांटेड नॉट दी फॉर द एजुकेशन टू बिकम अ बैरियर। और दूसरी बात यह कि वी ऑल्सो वांटेड टू रिवॉर्ड योर मोटिवेशन एंड कमिटमेंट।
एंड वी वांटेड नॉट कि आपकी मोटिवेशन और कमिटमेंट का एक बैरियर इसकी फी बन जाए. So these were the two reasons that we had proposed this scholarship. Definitely, we want to reward the people who invest themselves in this cause, and we also want to take care of the people ताकि उनके लिए additional burden ना बने. But if someone can kind of afford to pay for the program, you can definitely pay, and that does not prohibit the course. डॉक्टर आलिया, आपने एक क्वेश्चन लिख के पूछा है कि फैमिली मेडिसिन का डिप्लोमा और मेंटल हेल्थ कोर्स डिफरेंट है. बेसिकली हमने किया क्या है कि हमने पहले एक मेंटल हेल्थ का ये सर्टिफिकेट कोर्स बनाया था, जबकि जो फैमिली मेडिसिन है उसका डिप्लोमा था. लेकिन व्हाट वी रियलाइज वाज कि अगर हम इस सर्टिफिकेट कोर्स को इंटीग्रेट कर देना डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन में, तो दैट बिकम्स अ मोर पावरफुल टूल. बिकॉज जब आप पेशेंट को देखेंगे तो आप एक्सक्लूडेड एक मेंटल हेल्थ का पेशेंट नहीं देख रहे होंगे. एज अ फैमिली फिजिशियन, एज अ जनरल फिजिशियन, you will be looking at a patient in your primary care settings. So it makes a lot more sense to integrate this program into the diploma in family medicine. और जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह इसका, तो वो ये मिलेगा कि डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च फॉर यूएचसी. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं 20 के करीब जिन्होंने इस मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम के लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ. उनको डिप्लोमा जो मिलेगा दैट विल बी सिंपल अ डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन. So this is how it is distinguished. I hope that clarifies your question. Dr. Rabia, you can unmute yourself, please. Yes, sir. Sir, मेरा भी question जो है, it's more related to question number 1. It's that do you have your own diploma in family medicine or the course in family medicine, or are you collaborating with the CIFM, like Central Institute of Family Medicine? Because I came here through that. So that's one question. And the second question was that my interest was in this specific course or this diploma was because of the component of mental health which I want to learn. And I have a plan for which I have for my own personal growth and my own professional growth. Plan for creating awareness campaigns for students and people. And I would really want to collaborate with you if you would allow, or if you have time for that. Thank you so much, Dr. Rabia. आपके दो सवाल थे, एक कि CIFM का और हमारा क्या रिश्ता है आपस में. तो एज यू नो कि जो डिप्लोमास होते हैं ना और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ अपनी सील में इशू कर सकती हैं. एज एन इंस्टीट्यूट आप कोई भी वैसे वर्कशॉप तो कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू वांट इट टू बी एन एकेडमिक प्रोग्राम, तो इट नीड्स अ यूनिवर्सिटी सील. तो अब जब CIFM ऑब्वियसली फैमिली मेडिसिन में एक अच्छा बड़ा इदारा और डॉक्टर नासिर और उनकी टीम अमेजिंग काम कर रहे हैं, तो वी हैव एक्चुअली साइंड अ MOU, तामीर मिलत यूनिवर्सिटी एंड CIFM, जहाँ पे उनके जो हम स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं इन दिस प्रोग्राम विद शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी. सो इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन तामीर मिलत यूनिवर्सिटी एंड CIFM. I hope that addresses your first question. Regarding your second question, Dr. Abia, please reach out to Dr. Huda and we will absolutely love to work with you on anything that you want to do for mental health. So, aapne se, not just yourself, any one of you who wants to do something for mental health, please reach out to us and we will be more than happy to work with you. All right, okay. But that doesn't answer my question related to the scholarship, because we were told that this was a part of the payment that we made to CIFM. So I'm just kind of confused. Sorry, so your question is about que scholarship is what? Because we already paid, and we were told that we will have to pay what we already did. So I'm just now confused that do we have to pay more, मैं or? आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ. आप लोग अपनी मोटिवेशन स्टेटमेंट सबमिट करेंगे और आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाई यू वांट टू डू दिस प्रोग्राम, बिकॉज एज आई एक्सप्लेन टू यू कि हमने पिछली दफ़ा सारे लोगों को 100% स्कॉलरशिप दे दिया, विच मीन्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अस इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो हमने पैसे जमा कराने ही होते हैं. तो इट वाज माय डिपार्टमेंट GHD that submitted that fee to university on behalf of all the candidates. लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये जो सारा काम करना था ये नहीं किया, सेमिनार्स अटेंड नहीं किए, क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिकम नहीं किया, विच वाज एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी देन, क्योंकि जाहिर है ये पैसे किसी कमिटमेंट के तहत मुझे मिलते हैं ना, और अगर मैं एफर्ट पुट इन करूं लेकिन लोग उसको ऑनर ना करें तो इट बिकम्स डिफिकल्ट.
So what I we want see. to make sure is कि we only get the people who are serious about it. मतलब I मुझे ऐसी see. फीलिंग I आई कि see. जिस तरह लाहौर में दाता दरबार होता है ना, तो लंगर खुला होता है और हर बंदा जाके वहां से चावल भर के ले आता है अपनी शॉपर के अंदर. तो we don't want this program to be like that. We want Right. people who are committed, who are devoted, and who really want to do this program. They should be the people. और स्कॉलरशिप का तो मतलब भी यही होता है ना, स्कॉलरशिप किसी बिल्कुल नीड की बुनियाद पे दी जाती है या मेरिट की बुनियाद पे दी जाती है. बिल्कुल स्कॉलरशिप कोई लंगर नहीं होता कि एवरीवन गेट्स इट. सर, लेकिन इस एफिडेविट में ये भी था कि अगर हमें स्कॉलरशिप मिलेगा एंड वी आर अनेबल टू कंप्लीट देन वी हैव टू पे. ये भी तो एफिडेविट में था ना. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं अब क्या लोगों से लड़ाई करूं. मुझे अच्छे काम करने कम है कि मैं इस तरह के लोगों से लड़ाइयां करना शुरू कर दूं कि आई आपने सी नहीं आई किया सी. तो आप पैसे निकालो. जी तो सर. उससे बहुत बेहतर है कि लोगों को मैं पहले अपनी इंटेंशन बता दूं कि देखिए मैं इसलिए ये Yeah. करना चाहता हूं, ये पैसे मैं बिल्कुल आपके लिए कवर ऑफ करूंगा, लेकिन प्लीज आई वांट कमिटमेंट, आई वांट फर्म कमिटमेंट. राइट 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 राइट. ठीक है. थैंक यू सर. नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर इलियास. जी, आई वांट टू आस्क कि ये जो मेंटल हेल्थ का एग्जाम, ये एग्जाम के अंदर मर्ज हो या कोई सेपरेट हो, तो जो उसका जी, एज लिंक है पार्ट ऑफ द मेन ये एग्जाम हमें ही कहाँ से होगा. मिलेगा ताकि हम इसको फिल करें? जी, एज पार्ट ऑफ द मेन ओके एग्जाम ही ओके, होगा ये डॉक्टर एक एग्जाम इलियास. होगा दोनों. जी बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक उसमें ठीक. कुछ स्टेशंस और ये मेंटल जो हेल्थ के लिंक है ये होंगे. कहाँ मिलेगा? जी जी, स्कॉलरशिप का जो ये लिंक आपने सेंड किया ये आपको कहाँ इस से सेमिनार हमें के बाद मिलेगा? डॉक्टर हुदा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगी. ठीक है ठीक. दूसरा ये बताएं कि ये जो डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन की जो रिकॉग्निशन है जो के साथ इसका कोई रिलेशन था वो जरा एक्सप्लेन कर दें. हाँ मतलब इट्स नॉट स्टिल रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी के सील के तौर पे मिलेगा और यूनिवर्सिटी इसको डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करेगी. तो आपको शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी से इसको एक्रेडिटेशन मिलेगी. वी आर इन द प्रोसेस, लेकिन यू नो कि पीएमडीसी के साथ काम करना और ये चीज़ें कराना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. तो वी आर इन द प्रोसेस, लेकिन अभी पीएमडीसी से हमने एक्रेडिटेशन नहीं ली. लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी का मिलेगा. ठीक. और सर इसमें WHO के साथ कोई लिंक है इस प्रोग्राम का? मतलब ये जो सारे का वर्ल्ड सारा हेल्थ करिकुलम है ये हम WHO का फॉलो कर रहे हैं. हमारी यूनिवर्सिटी ने WHO के साथ MOU किया है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. नॉर्मली इस तरह के इदारों के इसी तरह के लिंक्स होते हैं. आई डोंट नो कि आपके जहन में कोई और सवाल है तो स्पेसिफिक पूछ लें. नहीं ठीक, अब समझ आ गई. ठीक है, शुक्रिया. थैंक यू. डॉक्टर आमना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड. अच्छा, आई डोंट थिंक वी कैन हियर डॉक्टर आमना. कोई Q&A में तो कोई चीज़ नहीं रहेगी अनएड्रेस्ड. आई डोंट थिंक सो. मुझे आप लोगों ने हाईलाइट किया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप आ रही है नेक्स्ट सैटरडे को. इज इट इन द सेम टाइम? 9 to 5 है. तो मे बी वी विल देन शेड्यूल द नेक्स्ट सेशन इन द फॉलोइंग वीकेंड. थैंक यू डॉक्टर Osama. I think it was Dr. Osama who highlighted this. Thank you so much for highlighting it. चलें, I think we had a great session. ये हम शेड्यूल कर देंगे उसके ऊपर. डॉक्टर आमना कह रही है अनम्यूट नहीं कर सक रही अपने आप को. कोशिश करती रहें, ट्राई अगेन एंड तक सेमिनार के. अगर बोल पड़ी तो बोल पड़ी, नहीं पड़ी तो आप टाइप कर सकती हैं. डॉक्टर आमना के बाद नेक्स्ट कौन है नीचे? डॉक्टर आयशा इकबाल. डॉक्टर आयशा, यू वांट टू गो अहेड? डॉक्टर आमना या डॉक्टर आयशा, आप लोग अनम्यूट करके अगर बोल सकते हैं तो बोल लें. इन द मीन टाइम मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि अभी इस सेमिनार के बाद डॉक्टर हुदा आप लोगों से गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करेंगे. इट विल टेक ओनली 5 minutes. प्लीज राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट्स एंड सबमिट देम. और इंशाल्लाह बाय थर्सडे वी विल कनेक्ट विद यू. और अभी इसके बाद जो है वो और थर्सडे को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर देंगे मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट के. अगर नेक्स्ट सैटरडे एक और ऑलरेडी वर्कशॉप शेड्यूल्ड है तो इट विल बी ऑन द फॉलोइंग वीक कि जब हम आपके साथ मेंटल हेल्थ का फर्स्ट सेमिनार कर रहे होंगे. डॉक्टर अली, ये सारी चीज़ें अपना गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगी. तो वंस यू आर एडेड टू द गूगल क्लासरूम यू विल हैव एवरीथिंग देयर. वहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी. टीम जो है वो शेयर करेगी आपसे फीडबैक फॉर्म आज का
तो प्लीज़ आपका जो फीडबैक है वो ज़रूर दें about the structure of the program, the things we discussed today. And with that, I'll thank you all for your time and very active participation. यकीन करें मैं थोड़ा सा उदास था पिछले वाले ग्रुप के बाद कि उनमें से कुछ लोगों ने हमें धोखा दे दिया इस तरह से कि इट डिड नॉट गो एज वेल, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी मोटिवेशन डेमोन्स्ट्रेट की है। तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑल। और फीडबैक पर फॉर्म आपको मिलेगा, प्लीज़ उसे फिल कर दें। और डॉक्टर हुदा आपसे जो गूगल लिंक शेयर करेंगी आप प्लीज़ वो भी कंप्लीट कर दें। तो थैंक यू सो मच। बैक टू डॉक्टर हुदा। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान। आई होप दिस एड्रेसेस एवरीवन्स क्वेरीज। अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, और यू कैन ऑल कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली जैसे आप लोग कर रहे हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत से मैसेजेस इकट्ठे आ जाते हैं तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले आता है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। लेकिन इंशाल्लाह वील क्रिएट अ गुड टीम इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों को फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। और जैसे डॉक्टर उस्मान ने कहा कि ऑन थर्सडे वील बी रीचिंग आउट टू यू। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो आप लोगों ने हमें अपने ईमेल एड्रेसेस सबमिट कराए हुए हैं ना, वो काइंडली मतलब हम भी चेक कर लेंगे, लेकिन ये कि गूगल क्लासरूम में अगर ईमेल एड्रेसेस ठीक नहीं हुए तो आप लोग लॉग इन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इस बात का खास ख्याल रखें कि द ईमेल एड्रेसेस दैट यू पीपल हैव प्रोवाइडेड अस शुड बी जेन्युइन और वर्किंग, और आप लोग उसको ऑफ एंड ऑन चेक कर रहे होते हैं। और आप लोगों का जो है वो जीमेल वी प्रेफर कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो जीमेल पे बना हुआ हो, तो उससे फिर आप लोगों के लिए इजीली होगा गूगल क्लासरूम एक्सेस करना। और एक और चीज़ कि अब हमारे पास 2 क्लासरूम्स हो जाएंगे, एक वो जो डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन का है, और दूसरा क्लासरूम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च फॉर यूएचसी का होगा। तो प्लीज़ डोंट मिक्स दीज थिंग्स। डिप्लोमा में आपको आपके मॉड्यूल्स मिल रहे हैं ऑलरेडी, जो मिल चुके हैं वो आपको हर 15 डेज के बाद आपको CIFM जो है वो दे देती है। पोस्ट ग्रेड में आपके सारे सेमिनार्स होंगे और रिकॉर्डेड सेशंस होंगे और रिप्रेजेंटेशंस भी होंगी, और इसके अलावा जो है वो और भी रेलेवेंट जो मटेरियल है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप पे भी आपके साथ जो फॉर्म है वो शेयर कर रही हूँ, फीडबैक फॉर्म भी, और इसके अलावा जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट लिंक आखिरी भी। चीज, सॉरी मुझे याद आ गई, आप में से सारे लोगों ने CBT कोर्स का कहा था कि यू आर ऑल वेरी कीन ऑन CBT प्रोग्राम। वी डू हैव अ अलग से CBT का सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आई वांटेड नॉट टू मिक्स इट विद दिस फुल कोर्स, लेकिन इफ यू आर कीन ऑन डूइंग दैट CBT प्रोग्राम तो आई आस्क माय टीम कि वो एक अलग से आपसे एक फॉर्म शेयर कर लें जिसमें आप लोग अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दें फॉर दैट CBT प्रोग्राम। आई एम ऑल्सो माइंडफुल कि आप जो है कितना टाइम दे पाएंगे कितनी सारी चीज़ों को। तो मेरा ख्याल ये था कि पहली चीज़ एक कर लें और फिर दूसरी चीज़ कर लें। तो अगर साथ साथ करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। तो लेट द टीम शेयर द फॉर्म विद यू एंड ऑल्सो शेयर योर अवेलेबिलिटी कि आप कब करना चाहेंगे उसको और कैसे करना चाहेंगे। तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट फॉर यू। दैट वाज द लास्ट थिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much all of you. So this is all from our side. आप में से अगर किसी की क्वेरीज कोई रह गई हैं तो यू कैन राइट देम इन व्हाट्सएप, रीच आउट टू अस। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में उसको एड्रेस कर लेंगे, तो प्लीज राइट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।